on your body. So we need to understand how the mechanism of the human body works, कैसे ये काम करता है और किस लिए ये joint pain शुरू होता है. And believe me, that you are facing today is not actually a problem of today, but dates back to 25 years that this problem has started. But you never got to know about it. Why? Because आपका body तब तक साथ दे रहा था, and as you age, slowly the degeneration is at a faster pace than the regeneration. So this is a normal process. Now we need to understand हम क्या कर सकते हैं ताकि we can beat the degeneration and accelerate the regeneration. So if I have your permission, I would like to share the screen to exactly make you understand कि हम लोग किस तरह से ये pains and aches, inflammation से बाहर निकल सकते हैं. जिन लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया है, उनसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ले, so that I know who I am speaking across to. Thank you so much to the lovely participants. Now, if you give me your permission, I would like to share the screen. So give me your permission on your chat that you're interested to know more about Ashtang Chikitsa. Thank you, Sangya ma'am. Let me see a few more yes and a thumbs up. Jisko voice nahi aa raha hai, please log out and log in again, because I think most of the participants are able to hear me. So just 2 minutes and I will share the screen. So Ashtang Chikitsa online therapy for neuromusculoskeletal problems. Namaskar, I welcome you all to the Ashtang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. In today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. Ashtang Chikitsa can also be used as a preventive method so that your internal organs are functioning at their optimum levels. Now, I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhuji has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body functions in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. So it's a profound way of addressing the aspects of a human body. So who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatment and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtang Chikitsa, freedom from pain and medicine. So Swamiji will talk about the Ashta Sharir, Shrishti Sharir, Garbha Sharir, Dosha Sharir, Marma Sharir, Pramana Sharir, Sankhya Sharir, Prakriti and the Vikriti Sharir. So Ashtang Chikitsa can heal. Of course, the list goes on and on.
knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, spine-related issues, slip disc, disc bulge, weak spine, spondylitis, frozen shoulder, tennis elbow, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, or the nerve issue. So, Ashtanga Chikitsa can also heal certain very chronic diseases like muscular dystrophy, multiple sclerosis, TMJ disorder, varicose veins, psoriatic arthritis, Ehlers-Danlos syndrome, spinal stenosis, myasthenia gravis, Bell's palsy, cervical spondylitis, carpal tunnel syndrome, ataxia, Guillain-Barré syndrome, AVN, Alzheimer's disease, dementia, glaucoma, vertigo, ankylosing spondylitis. So let's hear from Swami Raj Vibhu ji. वो क्या बताना चाहते हैं हमें न्यूरोमस्कुलर हेल्थ इश्यूज के बारे में. Thank you so much for listening to me patiently. I will just tell you how we are going to proceed in the webinar. इसके बाद आप देखेंगे recorded video of Swami Raj Vibhu ji, and then we will have a live testimony who will tell you how he or she has benefited from Ashtanga Chikitsa. Of course, we will be sharing the program details. And lastly, we will be having Swami Raj Vibhu ji himself coming live and talking about what your problems is so that you can discuss with him live. So do not delay and write down your problems, which is becoming a very big problem for you in your day-to-day lives, along with your name and number. And I myself will be taking up certain questions within the जी आप म्यूट हो गए. So I will be then giving you, Swamiji will be giving you an overview how you can come out of your disease through Ashtanga Chikitsa. So देर ना करें, लिख डालें आपके problems along with your name and number. Thank you so much. Namaste. Over to Anil ji to share the video. So let's start. Neuromusculoskeletal problem. We are talking about neuromusculoskeletal problem. आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, they actually create every movement in your body. आपके शरीर में वही movement create करना है. So I'll take one example and let's go ahead understanding why problem happens and what is the solution. मैं एक example से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे. So suppose what is the most common problem at this point of time? सबसे common problem क्या है आज के समय? Knee pain. Let's take knee pain as an example and understand what we are talking about. हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में knee pain से start करते हैं, right? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg. है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी. और स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज समहाउ डैमेज्ड वन नी, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी. बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम. डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो. People are still getting into problem. Then when you go to the doctor with your knee problem, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, and the most common thing that you hear is degeneration in the joint. जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, isn't it? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था. रीजनरेशन भी होना चाहिए. रीजनरेशन इज ऑल्सो
a part of this human system, but regeneration is not happening properly. Degeneration is happening. दूसरा कारण हो गया, now some person goes to a doctor with a swollen knee, inflammation in the knee, लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है. The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो. And he would try to see the problem there itself. वहीं पे वो problem ढूंढने की कोशिश करेगा और solution ढूंढने की कोशिश करेगा. But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका liver ठीक नहीं है. If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So, क्या इसका reason ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So, even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला. So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो inflammation क्यों है यहाँ पे आपके joint में problem क्यों? Because there is a liver problem, because there is a kidney problem, because there is an issue with digestion. Now Rachana ji said after menopause, osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? Hormone imbalance, isn't it? Another reason is hormone imbalance. Hormone imbalance होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, lower back pain and your knee pain can happen. So what are you doing to balance your hormones? There is no way. कोई तरीका नहीं है. Now if the osteoporosis has happened, हड्डियां अगर brittle हो गई, कमजोर हो गई हैं, porous हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर. If they have become brittle by calcium, how many people have come out of osteoporosis by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है. Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtanga चिकित्सा. Now in the last 50 years, पिछले 50 साल 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें जरा. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय problem हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start Ashtanga Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर,
प्रतिष्ठा मतलब बॉडी एज वेल एज माइंड, बिकॉज इन कुंभक पद्धति, इन कुंभक कलाचार और आयुर्वेद कलाचार, इन योगा कलाचार, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्मेशन. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. एंड there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, सर्टेन एज, दे वेयर ऑफ. दिस इज वेयरिंग ऑफ इज कॉल्ड एज विकृति एंड प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज प्रकृति. राइट? ये दो चीज हमेशा चल रही है. देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिलीज. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility. क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो. Your body doesn't want to. अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है. You don't take in, you try to exhale more. If you get tired, अगर आप थक जाते हैं, what is tiredness? थकना क्या हुआ? Lot of toxins in the body, isn't it? What do? You do long exhalation. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया है? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी. I'm just talking about humanity. I'm just saying it in that way. हमने क्या किया वातावरण का? खराब कर दिया. Do you think your body wants to inhale more or exhale more? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बंद तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी. What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है. Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है. It doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more?
degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है. Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं. So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है. So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, there is no chance of recovery. So what are you doing to create a balance of these two things? You are not doing anything. तो आप ना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? First of all, so this is the first thing that we need to get to: a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का. अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को. You hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है. Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना. अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे. एक बच्चे को देखो. See a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस. You hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको. You hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम. So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, all the 5 senses. You hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है, तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtanga Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है, so it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuromusculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना. Skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना, वहां पे. So disalignment, if you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight.
कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. 3 basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned, we call it dharan. Your chest can get disaligned, आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है, that part is called as caudy. And your legs can get disaligned, आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है, that is called as nale in the local terminology. नाभि, caudy, nale. Now if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है ना, आजकल डायबिटीज बहुत हो रहा है. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel, but nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of caudy or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें, just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. When you pull, what do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath, yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtanga Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak. Now let's go to the third part, Pramana. Now one more thing in Sankhya, what I want to actually tell you that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest. अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, pramana sharira, prakriti, vikriti, sankhya, pramana. चौथे पे आ गए हम, pramana. Pramana means density. इसका मतलब होता है density, गुरुत्व, भार, density. इसी को धातु भी कहते हैं. We call it धातु. There are different types of tissue in your body, isn't it? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. Like bone is very much dense. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. Your muscles is less denser than your bone. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as sapta dhatu. 7 different density tissue की है आपके शरीर. There are 7 different densities, tissue of different densities. Rasa, Rakta, Mansa, Med, Asthi, Majja, Shukra. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के tissues हैं. If the density becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, heart, liver,
लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. There is no medicine. There cannot be a medicine. दवाई हो ही नहीं सकती है. So you will have to work internally. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. You can do exercise, you can do weight training, isn't it? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैनॉट रिजुविनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? Should we do a little experiment? एक एक्सपेरिमेंट करें. Now keep your left palm like this. अपने बाईं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. But सांस रोक के, by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? Here, यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं. एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. You are making an external effort. By holding your breath, you are making an external effort. So when you lift something, कोई भार आप उठाते हैं. So how do you lift weight? Weight कैसे lift करते हैं? You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको. तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है?
तो और दूसरा तरीका, देयर इज नो मेडिसिन फॉर दैट, कोई दवाई नहीं है उसके लिए, एंड देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन, कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also, छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की movement होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना? क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement. Because there is a pumping organ. एक heart है जो blood circulation करवा रहा है. Lymph का कोई circulation नहीं करवा रहा. It will only happen by movement of the body. So if you move the body in a particular way, these toxins, they go out of the body. There is a constant rejuvenation of cells. Internal environment साफ बनेगा आपका, तभी there will be प्रकृति, new cellular form, better cellular formation. अगर वो environment ठीक नहीं होगा, तो wrong cellular formation called, and this is called as cancer. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. So because of an internal environment, cancer happens because of a cancerous environment. और उसके लिए, if you want to come out of that, then there should be constant rejuvenation of marma. तो इसमें हम marma, अष्टांग चिकित्सा में, there is a part in अष्टांग चिकित्सा, there is a part called as anganyasa and marma vinyasa, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtanga Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना? So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी. Material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, WhatsApp यूनिवर्सिटी, Facebook यूनिवर्सिटी, YouTube यूनिवर्सिटी. So everybody is educated.
You know, at least you must have heard of this word called Vata Pitta Kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea, but material, energy, and dynamism, Kapha, Pitta, Vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? Movement को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? What is vata? Movement. Vata also creates pain. So movement, how do you control movement? If you want to move your hand, how do you control the movement? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाएं, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए. How do you control this movement? By holding your breath in a particular manner. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. Yes or no? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So वात दोष से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you'll get a joint pain relief. Temporary, it will be temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice कुंभक. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata Pitta Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady, एक lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, उसका marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पलकती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time,
he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started Kumbhak in 4 to 5 months time. He said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done Kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now being busted. So now you can change your genetics also. If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall?
ग्रेविटी तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है, आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे ग्रेविटी के विरुद्ध, आप जानते भी नहीं है, you don't even know, notice, but you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. ग्रेविटी के अपोजिट फोर्स लगाना कमजोर हो गया, आपको कैसा फील होगा? हाउ विल यू फील इन योर बॉडी एंड माइंड? यू विल फील हेवी, पुल्ड बाय ग्रेविटी. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. विल नॉट फील लाइट. हाउ विल यू फील? हेवी. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे हेवी फील करेंगे. वेयर विल द हेवीनेस इंपैक्ट? ये हेवीनेस कहां असर करेगा? आपके जॉइंट पे. इट विल इंपैक्ट द जॉइंट. यस और नो? This heaviness is called as stress, S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root उदाना. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग अलग फोर्सेस में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा फोर्स वीक हो गया जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं. There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as अंगन्यास. The second one is called as hatha vinyasa. The third one is called as kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtanga Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you will not get a magic pill. कोई मैजिक दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत मैजिकल है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको.
You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important, wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई, वो आपको रूल करने लग गई. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए, जस्ट इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Manju Shah ma'am, excuse me, Manju Shah ma'am to share her journey of Ashtang Chikitsa. I'll just put you on spotlight, Manju ma'am. Yeah, Thank you so Rachna. much, Manju ma'am, for joining us tonight. Thank you. Yes, ma'am, So, you can yeah. continue. I had joined this program. I came across it on the Facebook and I joined the program and not knowing what it involved. I am a yoga teacher by profession. Also from the medical field, I have learned allopathy as well as homeopathy and Ayurveda. So as a yoga teacher, I'm art of living teacher also. So after seeing that whatever was that I attended, I joined the group and I saw that testimonials of many people, and my husband is suffering from Parkinson's. So to help him, I joined the program. And of course, I had given my what Prana Sakti diagnosis was mine. I did not have any neuromuscular issues. But what happened in the process was I started doing everything. And with that, the first thing that I was suffering because of his Parkinson's, I was suffering from anxiety. And there were other issues also in the family. So because of that, I was suffering from anxiety, and anxiety caused a lot of other issues. So as Swamiji explained, it was basically the Vata problem. So then my pancreas was getting affected, my liver was probably getting affected, I do not know, but my digestion was getting affected. As soon as the thought came, what happened was there was a tightness in the belly. That is what happened to me. And then I never had diabetes, but in a year's time, my sugar levels started increasing. I was in touch with a very good Vaidya in Pune, and I was taking the medicines. But after starting the Kumbhak therapy in April, the first week, we started with the Vata 3 weeks, Vata weeks. And I realized that Kumbhak basically I being from the medical field, also from the yoga field, whatever Swamiji explains, I understood that Kumbhak is the only way to repair yourself from inside. No amount of medicines can help you. Medicines will keep increasing. Yeah, so, and one other thing, that the mind gets affected first and then the body gets affected. This was happening with me. So then after doing the Kumbhak, I regularly do it. So I finished the 9 weeks, and within, say, after the 3 weeks, I realized that my sugar levels were becoming normal. My anxiety had reduced. There was no joint pain. But because my anxiety reduced, my diabetes was better. And the other symptom that had come, it was very recent, was the tingling sensation in the feet. That is, we call it as neuropathy. So that disappeared. That was the last one to come, and that disappeared first.
Yeah, whatever comes last goes first. So that is what happened. The neuropathy, the burning, not burning, but tingling sensation in the feet. Yeah, so that went first. Then the sugar levels were coming down, and I had constipation, which I had shared with when I filled up the form. So constipation medicines reduced, my anxiety medicines reduced. And of course, one thing I can say is that Kumbhak is helping me in every which ways. Only thing that is not helping me is I have reduced in weight, which is what I will want to know from Swamiji. What is why am I reducing in weight? But in all the other ways, one is the anxiety, second is the neuropathy, third is the diabetes, sugar readings, and on the whole, I'm feeling much better. My husband, who is a Parkinson patient, also is doing with me whatever is doing. Yeah, I have not filled up his Prana Shakti diagnosis form because I didn't know. I did ask, and I attended all the webinars which were conducted during this period, and I had not found out whether there is anything which was available for. But he is doing whatever was suggested to me, and he is also benefiting from it. So on the whole, Kumbhak is the only solution, because I know that Kumbhak affects the vagus nerve, which supplies it's a parasympathetic system. There are some doctors here. So it's a parasympathetic system which affects all the organs. So if you do the Kumbhak, it will repair all the organs of the body. Yeah, so it's internal healing and not dependence on the medicines. Slowly, you cannot stop all the medicines at a time. As soon as you start, it will take some time to repair itself. So you have to give that time and be regular in practices. The mentors were good. One complaint was there that the mentors changed in the last week, which I have reported to them, that please do not change the mentors because you're comfortable with one mentor. But otherwise, it was the Kumbhak has helped me a lot, and I would advise everybody to. Another thing, whatever Swamiji or it is suggested to you to do the Abhyanga. He gives you the Abhyanga is the massage of the body, yeah, which they recommend the oil for the massage. So I had been doing massage, but they recommended the oil also. So without even the joint pains, I have been regularly massaging my body, self-massage. So that helped. Plus, the most important thing I would say that the first video that was shared on the group was a ghee video. That will be shared with you people also. So the ghee video, consuming the ghee in the morning. And I asked my Vaidya, what will happen by taking early in the morning ghee? He said it will nourish all the 7 dhatus. Abhi Swamiji ne uske upar baat ki 7 types of tissues are there. So it will nourish all 7 types of tissues. So usme bones, aapka muscles, everything will come. Yeah, so if you follow, there is a food video also by Swamiji. आपने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर भी ध्यान देंगे. So it will definitely the whatever advantage you get from the Kumbhak will multiply. So listen to what they are saying. Yeah, do the Abhyanga properly. They have the Nasya, the mentors will guide you. The Nasya oil is there. So whatever problems are there, you will be able to deal with them. Yeah. Rachana, you want me to add anything else? Do you have any questions for me? Thank you so much, Dr. Manju Shah. I forgot to address you as doctor. No, please don't. I'm so sorry. I don't want to be addressed. I'm not practicing. No. I'm a yoga teacher and I want to be a yoga teacher. Okay, what is your specialization in? No, I have studied allopathy. I've studied allopathy. Okay. So I think it is very clear to the participants as to how, in medical terms, very nicely, Dr. Manju Shah has explained how Kumbhak works on the vagus nerve and how it helps you to bring back your health. So thank you so much once again, Dr. Manju Shah.
Now I would like to invite CA Rakesh sir to please share his journey of Ashtang Chikitsa. CA Rakesh Agarwal sir. Thank you नमस्कार। so much sir for joining us. थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम राकेश अग्रवाल है और बाई प्रोफेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरे को कोई न्यूरोमस्कुलर कोई ऐसी खास प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन मैंने स्वामी जी का प्रोग्राम देखा था फेसबुक के थ्रू, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देखने के बाद। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, ये जून महीने में ज्वाइन किया था मैंने। तब से मैं ये कुंभक थेरेपी कंटिन्यू कर रहा हूँ। मुझे बहुत ही लाभ है मेरे शरीर में। मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, जो कि अब मेरी बिल्कुल मेरे को ये 7th वीक चल रहा है हमारा कुंभक थेरेपी का। तो अभी ब्लड प्रेशर की तीसरे हफ्ते से मेरे को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बिल्कुल भी खत्म हो गई है। अब इस समय मेरे को बिल्कुल भी बीपी नहीं है, नॉर्मल बीपी है मेरा। एक मेरे थोड़े पैरों में एलर्जी हो गई थी पिछले 2 साल पहले, तो मेरे पैरों में ब्लैकिश हो गया था, मतलब दोनों पैर मेरे घुटने से नीचे काले हो गए थे, जो कि अभी मेरे करीब 4 हफ्ते बाद मेरे को 80% उसमें रिलीफ है। ये कुंभक थेरेपी बहुत अच्छी है, और जो स्वामी जी जिस तरह से बताते हैं, उनका बताने का तरीका, मेंटोर के बताने का तरीका बहुत ही अच्छा है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि ज़रूर जॉइन करें कुंभक थेरेपी, और जिस तरह से स्वामी जी बताएं उसी तरह से करें। दैट्स इट। थैंक यू। Thank you so much, Rakesh ji, for sharing your journey of Ashtang Chikitsa. Now I'm sure the participants are wanting to know more about the program details. So I would hand it over to Anil ji to please share the program details. Thank you so much once again. Over to Anil ji. Thank you, Rachna ji. Just give me a few seconds. I'll share my screen. रचना जी, आप स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ। Okay, great. So let's get to know about the Ashtang Chikitsa online program details, as a lot of you may be waiting for. अभी जल्दी से जानते हैं प्रोग्राम डिटेल्स क्या हैं, क्लासेस क्या हैं और फीस क्या है, क्योंकि इसके तुरंत बाद 7:30 बजे के आसपास स्वामी जी हमारे साथ लाइव आने वाले हैं टू आंसर योर क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ गाइडेड प्रोग्राम विच इज कंडक्टेड ऑनलाइन बाय ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है और जूम ऐप के ऊपर ये क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। जैसा कि आप अभी वेबिनार देख रहे हैं, ऐसे ही आपकी क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। तो ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, आपको कहीं आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अपने घर पर ही अपने जूम ऐप के ऊपर अटेंड कर सकते हैं। प्रोग्राम मॉड्यूल, जैसा कि स्वामी जी ने वीडियो में भी बताया, एज स्वामी जी हैज एक्सप्लेन्ड इन द वीडियो आल्सो, देयर आर 3 मॉड्यूल्स, वात, पित्त एंड कफ मॉड्यूल। द ड्यूरेशन ऑफ ईच मॉड्यूल इज 21 days or 3 weeks. So 3 modules into 3 makes it 9 weeks total duration. Now many people ask that which module they have to join. काफी लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉड्यूल ज्वाइन करना है। इसमें चॉइस नहीं होती है, आपको सभी मॉड्यूल करने होते हैं एक के बाद एक। यू हैव टू कंप्लीट ऑल 3 मॉड्यूल्स स्टार्टिंग विद वात मॉड्यूल। सो यू विल बी कंप्लीटिंग all 3 during this 9 weeks. Then program overview. If you see, I've used duration, I've written 9 plus 1. So it makes 10 weeks. Why 1 week extra? You'll get to understand in a short while. 9 के बाद एक 10वां हफ्ता क्यों लगता है, ये थोड़ी देर में हम जानेंगे। There will be 2 live classes every week, out of which one will be the learning or the main class and one will be the mentoring or the practice class. हर हफ्ते 2 क्लास रहेंगी 9 हफ्ते के लिए, जिसपे एक क्लास होगी मेन क्लास या लर्निंग क्लास बोलते हैं और दूसरी रहेगी प्रैक्टिस क्लास। What are the next steps? First step is to pay the program fee, and we have a special webinar pricing for people who are here. After that, you fill the participant onboarding form so that we can create login credential for course access. What is this course access?
you'll understand in a short while. And then you start your classes, starting with module 1 or the Vaat module. Again, total classes will be 6 classes in one module, then same for module 2, same for module 3. So 6 classes into 3 modules makes 18 classes. But if you see in white color, it's written total classes as 18 learning plus 1 customization class. आप ये देख रहे हैं 18 लर्निंग क्लास और एक कस्टमाइजेशन क्लास. व्हाई वन कस्टमाइजेशन क्लास एंड व्हाट इज दिस कस्टमाइजेशन, ये भी हम देखेंगे, ये भी हम जानेंगे थोड़ी ही देर में. सो टोटल एंगेजमेंट बिकम्स 10 वीक्स. आप 10 हफ्ते तक हमारे साथ रहते हैं, इनफैक्ट 30 दिन और, जो कि अभी मैं बात करूंगा. बैच 140th is starting on 24th July, which is a Monday at 6 PM. हमारा 140वां बैच शुरू हो रहा है 24 जुलाई, जो सोमवार का दिन है, शाम 6 बजे. मेंटर क्लासेस जो रहेंगी या प्रैक्टिस क्लासेस रहेंगी थर्सडेज को फर्स्ट मॉड्यूल के लिए, मॉड्यूल 2 के लिए फ्राइडेज को, मॉड्यूल 3 के लिए सैटरडेज को. ये सभी डेट्स हम शेयर करेंगे अभी इस चैट में, जूम चैट में और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी. विल शेयर ऑल द क्लास डेट्स इन द चैट here on Zoom and in the WhatsApp group also. What is the class experience like? Class experience में कैसा रहता है? As you must have understood by now, these are live sessions conducted on the Zoom app. जैसे कि आप जान चुके होंगे कि लाइव क्लासेस रहेंगी Zoom के ऊपर. Then mentors watch all the participants. So this is the reason you to keep your cameras on. ये तो आप समझ ही गए ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो कैमरा आपको ऑन रखना होता है ताकि आप हमारे जो मेंटर्स हैं आपको देख पाए और आपको फीडबैक दे पाए. Then there'll be written instructions in English and Hindi. हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखित निर्देश भी आपको मिलते हैं. सेशन रिकॉर्डिंग्स, सेशन रिकॉर्डिंग्स क्या है? ये जो क्लास लाइव क्लासेस होंगी उसकी रिकॉर्डिंग्स है. सो यू गेट क्लास रिकॉर्डिंग्स which will be there with you for a long time. Extra things apart from the classes, there'll be mental practices, unique diet perspective will be given. Mind you, this is not a diet plan. You'll get a video from Swamiji in which he explains the basics of food and how to use it so that it does not harm your body and support it. There'll be simple detox processes and there'll be a lot of knowledge that will be shared during your course. Now, before I come to the fee, I'll just stop here and just have a look at these numbers that I've written. I've written yearly expenses that you may be doing, or some of you may be doing, or maybe a lot of you may be doing, just to maintain the chronic ailment related to the neuromuscular issues. Doctor fee, you could be paying, these are yearly figures. So 6,000 to 12,000 you could be paying, you may already be paying to the doctor in the form of a fee. The consultants. If you're into physiotherapy, another 12,000 to 30,000 may be costing you. Then medicines may be another 15,000 to 30,000. So if you total all of these, 33,000 to 70. So if you total all of these, 33,000 to 72,000, you may already be spending just to maintain the disease that you are into. Why I'm sharing these is because when I announce the fee, it will be so affordable, so economical, because normally when when you're into chronic ailments and you spend a lot of money to manage your problem, we don't count actually how much we are spending, but just to make give you a comparison of how much it is costing you and how affordable, economical this therapy is. Okay, and it's also very important to know who this program is not for. ये भी जानना जरूरी है ये किन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं है, ताकि ये क्लियर हो सके ये किन लोगों के लिए एक्चुअली है, ये जानते हैं. First of all, this is not for people who are looking for a magic pill and wants results tomorrow only. मैजिक पिल की बात स्वामी जी करते हैं क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं मैजिक पिल के नाम से इस तरीके का कुछ, बिकॉज देयर कांट बी अ मैजिक पिल. And if you want result very fast, then this may not be for you, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है. और जैसा कि अभी हमारी पार्टिसिपेंट ने शेयर किया था मंजू मैम ने, so please you'll have to be patient. And this is not for those who are not ready to work on the body, because the kriyas will take approximately 60 to 90 minutes, different time for different people, because everybody has a different speed of learning. So
अगर आप अपने शरीर के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि मेरी काफी लोगों से बात होती है, कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं, आई डोंट हैव दिस मच ऑफ टाइम टू give me something which can work fast, give me medicine. So there's no medicine like this. So if you're not ready to work on your body, if you can't devote 80 to 90 minutes every day, then this program is not for you. And this is not for those who are impatient. We understand when you're into pain, when you're into a chronic ailment, the patience goes down. But from our side, we wanted to say this: please be patient when you are doing the program. And this is a very important point. This is not for those who are looking for a free treatment or just some tips. I'd like to stop here and talk about this point because it's very important. ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जो फेसबुक पे ऐड देखा होगा, इसमें लिखा था फ्री इंट्रोडक्टरी वेबिनार। जब हम फीस अनाउंस करते हैं तो लोग मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। दे मिसअंडरस्टैंड दैट वी हैड एडवर्टाइज दैट it's a free treatment, but we had advertised the free webinar, which is introductory, which all of you are attending right now. This is free. You haven't been charged for this webinar that you are attending. So please don't misunderstand that the treatment is free, because it's a guided program. There's a diagnosis involved and a lot of resources are used to put up this therapy, to provide this therapy to all the people suffering from neuromusculoskeletal issues. तो ये फ्री वाला मैं एक क्लियर करना चाहता था, बिकॉज many people just start getting angry, and so just to make it very clear. And it's also not for those people who are just looking for some tips. आपने देखा होगा स्वामी जी ने कोई टिप्स नहीं दिए आपको, हमने कोई टिप्स नहीं दिए, बिकॉज ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो होते हैं, वो टिप्स पर काम नहीं करते हैं। अगर टिप्स से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके होते तो अब तक हो चुकी होती, बिकॉज यूट्यूब में हजारों लाखों वीडियोस हैं। एवरीबडी कैन बी एन एक्सपर्ट ऑन यूट्यूब। आप भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, कोई भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, बिकॉज कोई बंदिश तो है नहीं उसमें। तो टिप्स के लिए अगर आपने ज्वाइन किया है ये वेबिनार, तो भी आपको लिए प्रोग्राम नहीं है, और अगर फ्री ट्रीटमेंट के लिए तो वो भी नहीं है। एंड देन now what all you get in the program, this is very interesting and this is one of its kind. Prana Shakti diagnosis for root cause determination. This alone would be worth the whole cost of this program that I'll be telling you about. Why? Because there are not many therapies which try to find out the root cause, or they do not know how to find the root cause. जड़ क्या है प्रॉब्लम बीमारी की, ये पता करने के लिए ज्यादातर थेरेपीज में नहीं होता है। तो वो नहीं पता है तो एक्सपेरिमेंट्स का ज्यादा स्कोप होता है उसमें। देर जस्ट डूइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर बॉडी, ऑन योर डिजीज। What is this Pran Shakti diagnosis? Let me try to explain. First of all, this is a non-medical diagnosis. And secondly, this is an online diagnosis. Now, both of these things may sound very strange to you, because online में कैसे होता है और non-medical कैसे होता है? Because we are used to going to a diagnostic center, giving a sample of us blood, urine, getting scanned, getting x-rays, all these things. So actually those diagnostic are just observations. अगर आप कुछ MRI में, कुछ एक्सरे में स्कैन करके कुछ अगर बोलते हैं कि हमें ये दिखाई दे रहा है, लेट्स से डिस्क में इतना गैप आ गया, आपकी स्पाइन में डिस्क बल्ब स्लिप हो गया, बट दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। वो हुआ क्यों है ये तो नहीं बता सकते हैं वो। सो ये डिफरेंस है, डायग्नोसिस वो नहीं होता, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये होता कैसे है, ये नॉन मेडिकल डायग्नोसिस और ये ऑनलाइन डायग्नोसिस होता कैसे है। नाउ यू विल गेट अ फॉर्म and in which you will be asked to do some experiments on your breath and on your emotions. आपको एक फॉर्म मिलेगा और आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने को बोला जाएगा अपनी सांस के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर, और वो नोट करना होगा इस फॉर्म के, एंड यू विल हैव टू नोट दोस व्हाटएवर एक्सपेरिमेंट्स यू डिड in the form. Second, you will be writing about your issues, your problems, your health issues in this form. Third, you will be uploading a selfie photograph, shoulder and above, in this form, in which the face should be clearly visible, but there have to be no specs on the eyes, and in case of ladies, no makeup also. तीसरी जो चीज आपको करनी है, एक सेल्फी फोटो अपलोड करनी पड़ती है इस डायग्नोसिस फॉर्म में,
और जिसमें चश्मा ना हो, और लेडीज के केस में मेकअप भी ना हो. When these three things reach Swamiji, he is able to determine which force out of the 84 forces has become weak, due to which you have landed in your current health problems. If you remember, Swamiji talks about the 84 forces. So through this diagnosis, he is able to find out, to determine the weak forces, and based on this diagnosis, the therapy will be customized and fine-tuned in the 10th week. I'll talk about it later in the coming points. Up next, there'll be weekly one main class of 60 to 90 minutes. हर हफ्ते 60 से 90 मिनट की एक मेन क्लास रहेगी. Why 60 to 90? 60 is the actual duration. Then we take up questions. So another 20 to 30 minutes for question answer session. So that's why 60 to 90 minutes. Third, weekly one practice class of 60 to 90 minutes, again same. And then online course access for 6 months. What is this online course? As I told you, the classes are recorded. जैसा कि मैंने बताया, सभी क्लास रिकॉर्ड की जाती है और आपके कोर्स डैशबोर्ड में अपलोड कर दी जाती हैं. All the classes are recorded and uploaded to your course dashboard, and you'll be able to access all the recordings through a login ID and password. So this course access will remain with you for 6 months. ये 6 महीने के लिए रहेगा, which is enough time to learn all the kriyas by heart, because if you're practicing daily, it will not take more than 2 months to remember all the kriyas. Then videos of all kriyas done in the class. How this is different from the last point? The last point was about the class recording, the whole duration of 90 minutes. But this fifth point is about each video of each kriya separately, because some kriya may take 5 minutes, some may take 2 minutes to watch. So separate videos of separate kriyas are given to you in the dashboard, course dashboard. There'll be written instructions in English and Hindi. हिंदी इंग्लिश दोनों में written instructions रहेंगी, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और डेली क्रिया करने के लिए उनको रेफर कर सकते हैं. Then this is very very important. Private WhatsApp group to ask your doubts and questions. काफी लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर 2 हफ्ते क्लासेस होंगी, 2 दिन क्लास होंगी हर हफ्ते, तो बाकी दिन अगर डाउट हो तो कैसे करना है. सो इस जो व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जो क्लास ग्रुप कहलाता है, इसके अंदर आपने वो डाउट पूछने हैं, क्योंकि बाकी 5 दिन खुद आप प्रैक्टिस करेंगे, और उस समय अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन सवाल आता है आपके दिमाग में, तो इस ग्रुप में आप पूछेंगे. हमारे मेंटर्स इसी ग्रुप में ऐड होते हैं, वो आपको आंसर करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, वो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे. Then 8th point is individual participant progress tracking and feedback, which we do on a weekly basis. सभी की प्रोग्रेस की ट्रैकिंग की जाती है ताकि हम पता कर सकें कि अगर आप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको अगर आप आपके इश्यूज थोड़ा ठीक होना शुरू नहीं हो रहे, तो किस वजह से, तो ये ट्रैकिंग की जाती है. देन थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th वीक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पॉइंट दैट आई टॉक्ड अबाउट. प्राण शक्ति डायग्नोसिस से ये पता लगता है कि बीमारी की जड़ क्या है, या जो 84 फोर्सेस हैं उसमें से कौन सी फोर्स वीक हो गई है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ गए. अब 10वें हफ्ते में आपकी थेरेपी को फाइन ट्यून किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है. इन द 10th वीक योर थेरेपी इज फाइन ट्यून्ड एंड कस्टमाइज्ड. व्हाई 10th वीक? Many of you may be having this question in your mind. Why 10th वीक? अगर थेरेपी को कस्टमाइज फर्स्ट वीक में ही, अगर प्राण शक्ति डायग्नोसिस फर्स्ट वीक में हुआ है, तो व्हाई नॉट डायग्नोसिस? उसका रीजन है, व्हाई नॉट द कस्टमाइजेशन इन द फर्स्ट वीक? रीजन क्या है? द बॉडी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड टू रिसीव दिस कस्टमाइज्ड प्रैक्टिसेस. नो, इस कि 9 हफ्ते में फिर होता क्या है? व्हाट हैपेंस इन दीस 9 वीक्स इफ द थेरेपी इज कस्टमाइज्ड इन द 10th वीक? 3 इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट प्राइमरीली यू विल अंडरस्टैंड बाय 3 थिंग्स. फर्स्ट, द वात पित्त एंड कफ ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड. सेकंड, you are taught controlled exhalation, because the basis of this therapy is controlled exhalation, and this is the reason if you are doing Kapalbhati on a daily basis, you are advised not to do Kapalbhati, because that is forced exhalation, और यहाँ सिखा रहे हैं आपको controlled exhalation. And third important thing that happens during these 9 weeks is
the three basic alignment, like Swamiji talked in the video also, तीन basic alignment होती है body, inner thighs, navel and the chest. इसका alignment किया जाता है. सो अब शरीर तैयार हो जाता है इस 10वें हफ्ते में कस्टमाइज या फाइन ट्यून्ड क्रियास को रिसीव करने के लिए. इसलिए 10वें हफ्ते में आपकी कस्टमाइजेशन, राइट. आगे बढ़ते हैं. एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर 30 days आफ्टर द प्रोग्राम इज ओवर. ये एक बहुत ही यूनिक चीज है हमारे प्रोग्राम के बारे में. 10 हफ्ते में आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. उसके बाद भी 30 दिन तक आपको लाइव सपोर्ट मिलता है. वो क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डू दिस इज बिकॉज मेनी अ टाइम्स पीपल, many some of the participants, they some are not able to attend the classes, maybe due to some long illness or some a function in the family, or could be any other reason. So you still get 30 days. We understand this is an online program, so you don't have to worry if you miss any classes. Recording तो रहेंगी, बाकी चीजें तो रहेंगी, support रहेगा, but you still have 30 days of active support. All these points I've already talked about. Now the program fee for Ashtang Chikitsa, which many of you must be waiting for. The normal fee is 14,500, but like I promised, there's a special webinar pricing for people who have stayed back. What is that? Just 6,500 for the complete program. All the 18 classes, the customization class, the diagnosis, the support in the group, the recordings, everything all inclusive. This has been made so affordable that most of you will be able to take advantage of this. How to enroll? Step 1 is to pay the program fee. Then step 2 is to post the payment receipt in the WhatsApp group. Step 3 is to fill the participant onboarding form that Neha from our team will be sending you. And then you join the class WhatsApp group where you'll get daily support, which I talked about just now. And then step 5 is to start attending classes, start to learn Ashtanga Chikitsa. So simple 5-step process. Payment methods we'll share in the group and here on chat also. Now this is the last slide, and I'd like to stop here to talk about the super team that will be at your service. We do not call ourselves a super team. Our participants have given us this title because the kind of support they get during the program. We have Rachna Shimal Bothra, she's the program director, and she is the host of this webinar also. Shalini Bhagwat, she's the class manager. She takes care of the batches, the mentors, who to assign, and timings and everything. Ashwini Kumar, he is the IT manager, enrollment in charge. Neha Upadhyay, she'll be the person you'll be talking to the most before you start your classes. Then we have a lot of mentors like Ranjana, R.D. Gupta, Soni, Aruna, Neena, Meera, Sushma, Manvi, Surya Pratap. Why so many mentors? Because we understand it's an online program. So every participant needs to be taken care of. So that's why so many mentors we have. Then WhatsApp admin, Anil Chan, that's me. I'll be answering all of your questions in the WhatsApp. Right after this, Swamiji will be live with us to answer your questions. But due to shortage of time, he may not be able to take all the questions. So it's a request from all of you. If your question is not answered or taken by Swamiji, or if Rasnaji is not able to take it, then please do not worry about it. Please post your question in the WhatsApp group. I'll answer each and every question in the group only. Then technical person, we have Himanshu Upadhyay, who uploads all the videos, the written instruction, everything. He helps you with if you have any problem with the login, the ID, the password, everything. He's the person who will be helping you out. Then we have a special personal support team who will be calling each and every participant to inquire if the program is going okay or if you are having any problem or not. We have a special team, a 4-person team, Anita, Ankana, Kavita, and Usha. So you can expect a call from them, and because they talk to you, they find out if there's any problem and we sort it out. So with this, I come to the end of my presentation. Thank you and namaskar. Hand over the webinar back to Rachna. Thank you. Swami ji has joined us. Namaskar, Swami ji. मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको, स्पॉटलाइट कर देता हूँ. Okay.
मैं क्वेश्चंस अभी ले लेता हूँ। लेट मी स्टार्ट। ओके, गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स, मैं थोड़ा स्क्रॉल करके। एक मिनट। अगर यहाँ क्वेश्चन नहीं है तो लोग पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं। अभी मैं डॉक्टर अरुणा भारती जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर अरुणा भारती, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस, प्लीज आस्क। I don't have any question. Oh, okay. I saw your hand raised, so okay. No नहीं, problem. मुझे Okay. Sangeeta Ranjan ji writes, I am suffering from autoimmune disease, multiple connective tissue disease. मुझे पता पेन बहुत रहता है, अभी लेग में बहुत पेन रहता है। अच्छा, लेग में पेन रहता है या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की बात जब कर रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको पहले समझ जाइए, उसके बाद पता चलेगा कि इसका हम सोल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हैं। पहले आप समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका सोल्यूशन है क्या। पहली बात तो कोई भी दर्द जो होता है वो इन्फ्लेमेशन से होता है। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, है ना, एक अंग्रेजी का वर्ड है इन्फ्लेमेशन। वो कैसे कहते हैं, आप ऐसे खरोच मार लो हाथ पे नाखून से, यहाँ जलन होने लग जाएगा, कुछ डैमेज हो, तो ये जलन ही इन्फ्लेमेशन, ठीक है ना। इन्फ्लेमेशन ज्वलनशीलता भी कह सकते हैं। तो आपके शरीर के अंदर ज्वलनशीलता होगी तो आपके शरीर के अंदर दर्द होगा, जॉइंट में दर्द होगा। मगर वो ज्वलनशीलता, वो डैमेज किस चीज का है, क्योंकि बॉडी तो रिपेयर करना जानती है, कहीं डैमेज होगा तो रिपेयर कर देगी, मगर वो ज्वलनशीलता किस चीज की। तो आपके शरीर में दो तरीके से आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता। कोई भी इसके साथ में कुछ करेंगे ना, इसके शरीर के अंदर कुछ डालेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेगा। दो तरीके से करेगा। भोजन डालेंगे तो भोजन को पचाएगा, यूज करेगा, नए टिश्यू रीजनरेशन करेगा, इसे मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कहते हैं। अगर भोजन के अलावा कुछ गलत चीज जाएगी तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। इम्यून रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है, दो तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो मैं आपको दर्द से रिलेटेड बता रहा हूं। तो आपको दर्द जो है आपके शरीर का, वो इसको बचाने का तरीका, एक चीज कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा जब भी रिस्क होगा आपके बॉडी के अंदर। प्रोस्टाग्लैंडिन वो ज्वलनशीलता पैदा करता है, वो एक ऐसी चीज है जो ज्वलनशीलता पैदा करती है, ताकि आपके शरीर को पता चल जाए यहां पे डैमेज है और वो उसको ठीक कर दे। मगर उसको आप इनहिबिट, जब आप खाते हैं ना कोई दर्द की दवाई, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर है, यानी उसको रोक देगा। तो पहली बात, जब भी कोई गलत चीज जाएगी आपके शरीर में तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा या उसको ठीक करने का रिस्पॉन्स होगा। ये दो तरीके से होता है। एक तो या तो कोई गलत ऑर्गेनिज्म गया तो उसको मारेगा, या सपोज करो आपने केमिकल खा लिया, दवाई खा ली, ये दवाई आपके शरीर में जाती है तो मैक्सिमम पार्ट आपका शरीर निकाल देता है। जैसे पैरासिटामोल खाया 500 मिलीग्राम, 495 मिलीग्राम आपका शरीर निकाल देगा। पानी में घुलो के किडनी के थ्रू निकाल देता है। किडनी पे लोड जाएगा इसलिए किडनी डिजीज बढ़ रहे हैं, और लिवर पे लोड आएगा इसलिए लिवर की इश्यूज या मेटाबॉलिक इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो ये है आपके शरीर का तरीका। नाउ कुछ चीजें उसके हम लोड करते हैं, ओवरलोड करते हैं। हमको 5 मिलीग्राम चाहिए था, हमने 500 मिलीग्राम खाया, तो 495 शरीर ने निकाल दिया, 5 मिलीग्राम घुस जाएगा। अब ये बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज है जो बॉडी नहीं चाहता घुसना, तो ये खतरा समझता है आपका शरीर इसको। इसकी वजह से इंसुलिन रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स आपके बॉडी में आता है।
प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है, दूसरी चीज हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन, एलर्जी होती है ना, जो एंटी हिस्टामिनिक खाते हैं जब एलर्जी होती है, यह हिस्टामिन एक्सेप्ट करने में आपकी बॉडी को मदद करता है। कोई भी बाहर से चीज खाते हैं गलत है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा ताकि नुकसान कम हो। एक तो जो नुकसान हुआ उसको रिपेयर करने का काम करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन, दूसरा नुकसान कम हो, हिस्टामिन रिलीज हो। अब ये बार बार खाते जाइए। आपको दवाई दी जाती है ना, हर 4 घंटे में खाना, 5 घंटे में, दिन में 3 बार खाना है, 2 बार खाना है। तो अगर आप इतनी दवाइयां खाते जाएंगे जिंदगी भर, तो आपके शरीर का रिपेयर का फंक्शन और एक्सेप्टेंस का फंक्शन खत्म हो जाएगा। आप अगर प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स खाते जाएंगे तो उसके और भी काम है, रिपेयर के अलावा और भी काम है। फीमेल्स में वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। अब आजकल की फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल खराब हो रही है, कंसेप्शन नहीं होता है, कंसेप्शन प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है। गर्भधारण, तीसरा काम डिलीवरी। अब देखो 10 में से 6 लेडीज का सी सेक्शन होता है, सिजेरियन होता, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही, बॉडी में रिपेयर नहीं हो रहा। अब घुटने घिस रहे हैं ना लोगों के, क्योंकि रिपेयर ही नहीं हो रहा। आप प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर खा रहे हो, 40, 50, 60 साल तक खाया आपने बचपन से। पैरासिटामोल तो हर घर में होगा कि नहीं होगा, दर्द की दवाई हर घर में होगी कि नहीं होगी, निम्बुसोलाइड होगा, कुछ और होगा। तो ये तो हमने किया। अब ये इम्यूनिटी बार बार ऊपर आती है तो इसका बैलेंस है। या तो आपके घर में सुख शांति है तो आपका किचन चलेगा, यानी मेटाबॉलिक रिस्पांस बॉडी देगा, तो इम्यून रिस्पांस को नीचे आना पड़ता है। मगर इम्यून रिस्पांस में मेटाबॉलिक रिस्पांस को नीचे आना पड़ता है, यानी भोजन को पचाने की क्षमता शरीर की कम से कम होती जा रही है। और ये सब इसको कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो आपकी डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। थायराइड क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर क्या है? उसका भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से सीधा रिलेशन। आगे बढ़ते जाएंगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और कैंसर तक चले जाएंगे। तो ये तो काम हम कर रहे हैं ना। आप शरीर के अंदर खतरा पैदा करेंगे, यानी कि आप इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स डालेंगे, फिर कहेंगे कि दर्द हो रहा है। कुछ टाइम के लिए तो दर्द बंद हो जाता है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाता है, ज्वलनशीलता कम हो जाती है। तो आप कहते हैं अरे ठीक कर दिया। ठीक नहीं किया, उसने टॉर्चर कर दिया आपके बॉडी को। अब मेटाबॉलिक रिस्पांस इसके साथ में ही जोड़ रहा हूं। लिवर पर लोड आएगा, किडनी पर लोड आएगा, लिवर कमजोर होगा, किडनी कमजोर होगा। कितने डायलिसिस सेंटर खुल रहे हैं आप देख लीजिए। अच्छा, लिवर कमजोर होगा तो आपके शरीर में कोई नई चीज बनेगी नहीं, इसलिए घिसावट हो रही है। एक तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने के लिए उत्तेजक है, उसको आप रोक देंगे। अच्छा, हिस्टामिन की बात की ना, कितने लोगों को एलर्जी हो रही है आज के टाइम पे? एलर्जी, हर चीज से एलर्जी हो रही है। कहते रोटी से एलर्जी हो रही है जी। अब बताओ, रोटी से ही एलर्जी हो गई, गेहूं से एलर्जी हो गई, तो खाएंगे क्या? अभी तो किसी भी चीज से एलर्जी हो रही है। अब जिसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, कई लोगों को होगा, ऐसा बताया गया होगा। अंग्रेजी वर्ड जब बताते हैं ना आपको, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिरंगी लैंग्वेज है वो, आप सोचते हैं आपको समझ आ गया, मगर नहीं समझ आया आपको। हिस्टामिन किसी नई चीज को आपको बॉडी में एक्सेप्ट करने का काम करवाता है। हिस्टामिन को इनहिबिट करेंगे, एंटी एलर्जिक खाएंगे, तो आप क्या करेंगे? आपको कोई एक्सेप्ट शरीर के अंदर होगा ही नहीं। अच्छा, लिवर मेटाबॉलिक, यानी आपके भोजन को पचाने का पहला स्थान है, पहली सीढ़ी। वो पचेगा तब टिश्यू बनेंगे। 6 लेवल पे आपका भोजन पचता है और 7 अलग अलग क्वालिटी के टिश्यूज, सेल्स आपके बॉडी में बनते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म होता है। 6 बल लगता है, 6 शक्तियां लगती है आपके बॉडी की वो करने के लिए। देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। आपने पहले ही लेवल पर लिवर को कमजोर करना शुरू कर, तो नए टिश्यूज तो बनेंगे नहीं। मुझे बताइए, आपका शरीर नए टिश्यूज बनाता है ना? जब इतने छोटे 2 किलो के जब पैदा हुए थे हम, अभी 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो के हो गए ना। हमारे शरीर ने तो बनाया, उसको एक ही काम आता है, रिपेयर करना। अगर उसको रोके ना
तो शरीर एक पूरी लाइफ टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, मगर उसको रोक रहे हैं। आप जिसे ट्रीटमेंट कहते हैं वो टॉर्चर है बेसिकली। जब 500 मिलीग्राम खा रहे हैं पैरासिटामोल, 5 मिलीग्राम जो आपके शरीर में घुस रहा है, उसको पता है क्या नाम दिया जाता है? उसको कहते हैं फर्स्ट लीवर बाईपास, यानी लिवर को धोखा देके निकल गए। धोखा देने को आप ट्रीटमेंट कहते हैं क्या? और अलग अलग तरीके से धोखा देने के हमने तरीके निकाले। सीधा ब्लड आईवी इंजेक्शन डाल दो, लिवर को बिल्कुल 100% बाईपास कर दो। फीवर होता है आपके वायरस को मारने के लिए। आपका शरीर कोई भी इंफेक्शन से कैसे लड़ता है? गर्मी पैदा करके, फीवर करके। आप फीवर नीचे कर देते हो। उल्टी होता है, उल्टी कम बंद कर दोगे। दस्त होगा, दस्त बंद कर दो। रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म। हम टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोल रहे हैं ना। जब हम टॉर्चर को ट्रीटमेंट बोलेंगे तो आपका शरीर काम कैसे करेगा, रिपेयर कैसे करेगा? बताइए। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो होगा ही ना, क्योंकि खतरा बार बार आपका भोजन खतरा है ना। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यही भोजन आपको मिल रहा है। शरीर उसको भोजन नहीं समझता। तो किसी ने पूछा क्या आप भोजन के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हम बताते हैं अपने प्रोग्राम में, मगर क्या डाइट प्लान नहीं देंगे हम आपको। हम चाह रहे हैं कि आपकी डाइजेशन इतनी अच्छी हो जाए कि आप कुछ भी खाएं प्रॉब्लम नहीं हो। हम ये इस तरफ में काम कर रहे हैं। डाइट को रेगुलेट करके, जीवन को रेस्ट्रिक्ट करके जीना कोई अच्छी बात तो नहीं है भाई। दवाई खा के जीना कोई अच्छी बात तो नहीं है। डर के मारे दवाई खाते हैं कई लोग। और मुझे बताइए, ये बीमारियां 100 साल पहले कहां थी? 100 साल पहले बीमारियां कहां थी नहीं। बहुत साइंटिफिक स्टडीज हो गए और वो कहते हैं कि एवरी ट्रीटमेंट क्रिएट्स एडवर्स रिएक्शंस, ड्रग रिएक्शंस, एंड क्रिएट्स मोर डिजीज। ये तो वही हमारी अपनी साइंटिफिक कम्युनिटी है ना, जिनका रिसर्च चाहिए। तो कहने का मतलब, जब बार बार हम इम्यूनिटी से छेड़छाड़ करेंगे तो इसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है? अच्छा, इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक कैसे करेंगे? आसान शब्दों में बताऊं इसको ठीक कैसे करेंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपके एक्सपीरियंस में क्या है, पहले ये पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो एक अंदाजा है, कोई टेस्ट नहीं होता ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लिए। अगर कोई एंटीजेंस ज्यादा आपके ब्लड में पाए गए तो अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो लेकिन आपके एक्सपीरियंस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो दो चीज समझिए। आपके शरीर में कोई चीज बनती है और कोई चीज निकलती है। नए सेल्स बनेंगे, पुराने सेल्स खत्म होंगे, ये दो चीज होती है। इसका 2 फंडामेंटल रूल है। नए सेल्स बनने की स्ट्रेंथ आपके इनहेलेशन यानी इनटेक के ऊपर डिपेंड करता है, और खत्म होने का जो उपक्रम है वो आप कितना रिलैक्स कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलेशन पे डिपेंड करता है। अब जरा किसी धुएं वाली गाड़ी के पास में जाइए, आप देखिए आप सांस कम लेंगे ज्यादा लेंगे? आप बंद कर देते हैं ना सांस। मगर क्या आपको मालूम है हमने पूरे एनवायरनमेंट को इधर उधर डिविएट कर दिया, खराब कर दिया? तो नेचुरली अपने घर में बैठ के क्या आप ठीक से सांस आप ले पा रही है? आपका शरीर ले रहा है? जब धुएं के पास जाके वो कम लेता है तो आपके घर में बैठ के आपका एनवायरनमेंट कोई अच्छा तो है नहीं, वो भी कम ले रहा है, इसलिए रीजनरेशन आपकी बॉडी में कम हो रहा है। तो अगर मैं ये बोलूं कि इनहेलेशन का स्ट्रेंथ और एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ अगर अपनी बॉडी की बढ़ा देते हैं और या बैलेंस में लेके आ जाएंगे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। आप या दूसरे शब्द में बोले तो आप जितना बॉडी के अंदर इजी तरीके से रह पाएंगे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाएगा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कोई ऐसी चीज नहीं है जो पेड़ पे चढ़ी रहती है। आप सोचते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया तो हो गया, नहीं, सुबह होगा शाम को ठीक हो गया होगा। मगर क्योंकि वो बार बार हम उसको प्रोवोक कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने आप को ठीक पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा। तो अगर आप अपनी टॉलरेंस बढ़ा लें तो आपका शरीर जो है जितने भी नुकसान आपके साथ में हो रहे हैं ना उसको झेल पाने में सक्षम हो जाएगा। पहली बात,
मैं एक एग्जांपल भी दे सकता हूं आपको, आप ये ट्राई करके देखो। एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए क्या होना चाहिए कि अगर आप मैक्सिमम जो ब्रेथ ले सकते हो, सांस ले सकते हो, सपोज करो आप 5 सेकंड का सांस ले सकते हो, तो 4 गुना कम से कम रोकने की क्षमता, और उसके बाद में जितना लिया उससे 2 गुना टाइम पीरियड में एक्सेल करने की क्षमता होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक नंबर दे रहा हूं, आप लोग कभी ट्राई कर सकते हो तो पता चल जाएगा आपकी हेल्थ कैसी है ना। एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, ये नंबर है 62412, 62412। 6 गिनती की सांस भरिए, 24 गिनती की रोकिए, और 1 सेकंड की एक गिनती होनी चाहिए, और 12 गिनती की छोड़नी पड़ेगी। आप में से 99% लोग, एक आध कोई होगा जो ये कर पाएगा, अदरवाइज वो जो 12 सेकंड छोड़ने की में ना, सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रीजनरेशन और डीजनरेशन का बैलेंस नहीं है। इसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलिए। अगर वो लेके आ जाएंगे स्ट्रेंथ तो बैलेंस आ जाएगा, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक। और दूसरे तरीके से समझाओ, बहुत जरूरी है चीजों को आप समझिए अपने एक्सपीरियंस से, ना कि कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया, कहा कि नहीं जी ये साइंस है। बॉडी को टॉर्चर करना तो साइंस नहीं है, और 100 साल से, पिछले 100 साल से हम तो साइंस बोल रहे हैं। एक इंसान बता दीजिए 100 साल में जो डायबिटीज ठीक हो गई हो दवाई खा के, केमिकल खा के। एक इंसान बता दीजिए जिसका थायराइड ठीक हो गया हो दवाई खा के। है ही नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसका ठीक होता है? ब्लड प्रेशर किसका ठीक होता है? हार्ट डिजीज किसका ठीक होता है दवाई खा के? 100 साल में हम एक एविडेंस में नहीं निकाल पाए, और उसको हम साइंस बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये मालूम ही नहीं है कि डायबिटीज क्यों होती है। मालूम है आपको? आप गूगल करिए, जरा जानने की कोशिश कीजिए कि डायबिटीज टाइप 2 क्या होता है। उसके बाद पूछिए वो क्या होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और वो क्यों होता है, तो आपको पता चलेगा आखिरकार कहां पहुंचेंगे। हमें मालूम नहीं है क्यों होता है। ना और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप अपना बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा देंगे, देखिए याद कीजिए अपने पूर्वज को, दादी नानी ऐसे याद कीजिए, उनको कैसा भोजन मिलता था। आपके जैसा तो भोजन नहीं मिलता था, आपके जितनी तो लग्जरी नहीं थी। उनको थोड़ा प्लेट पे भोजन जुटाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, शारीरिक मेहनत। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल हमने चूज किया, क्या इसके लिए हमने टॉलरेंस क्रिएट किया? जिस तरीके का हम भोजन खाने लग गए या जीवन जीने लग गए, क्या इसके लिए हमने अपने शरीर में उसको सहने की शक्ति क्रिएट की? वो तो काम हमने किया नहीं। ऐसे मान के चलिए कि 10 केजी का वेट आप उठा सकते हैं, अब आप 20 केजी का वेट उठाना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अपने टॉलरेंस क्रिएट करनी पड़ेगी ना, ताकि वो 20 केजी नुकसान ना करे आपको। अब 10 केजी का वेट कैसे उठाते हैं बताइए? सांस रोकना पड़ता है कि नहीं रोकना पड़ता? उठा के देखिए ना, ट्राई करके देखिए, एक्सपेरिमेंट करके देखो। 10 केजी उठाने के लिए सांस रोकते हो ना, 20 केजी उठाने के लिए कितनी सांस रोकनी पड़ेगी? उससे ज्यादा। यानी आपकी सांस रोकने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। क्या आपने काम किया? ये लाइफस्टाइल जो आपके ऊपर लोड है, क्या इस लोड को सहने की शक्ति बनाई है आपने? क्या आपने अपनी सांस रोकने की क्षमता बढ़ाई है? क्या आपने कुंभक कैपेसिटी बढ़ाया है? नहीं बढ़ाया। अब किसी इंसान ने बोला मेरा 200 शुगर लेवल रहता है, और 200 शुगर लेवल के कारण मुझे डिजीनेस, चक्कर भी आता है। तो मैंने उसको केवल एक बात पूछा। क्या पूछा? कि 10 200 वाले बंदे एक साथ इकट्ठे कर लो जिसका 200 शुगर लेवल है, क्या सभी को चक्कर आ रहे होंगे? नहीं, सभी को तो नहीं आ रहे होंगे। तो इसका मतलब शुगर से चक्कर आ रहा है, या आप झेल नहीं पा रहे 200 को, उसकी वजह से चक्कर आ रहा है। शुगर लेवल प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपकी झेलने की क्षमता नहीं है, इस वजह से वो प्रॉब्लम हो गया। मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता सकता हूं, 3-3 हार्ट अटैक जो कुंभक कर रहे हैं, 3-3 हार्ट अटैक आ गया, कुछ नहीं हुआ, हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर वो दवाई ले रहे होते तो एक में ही खत्म, क्योंकि झेलने की क्षमता नहीं है।
400 शुगर लेवल, ग्लूकोमा ठीक हो गया, इन्फेक्शन जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि झेलने की क्षमता बढ़ गई, वो प्रॉब्लम नहीं रहा अब। मगर नंबर का गेम, सोचिए आप बढ़ते हैं, उम्र में बढ़ते हैं, तो आपके लेवल्स भी चेंज होने चाहिए नहीं? क्या वही शक्ति रहती है जो 25 साल के थे? 65 साल में क्या वही जान रहती है शरीर में? नहीं रहती ना, तो सब कुछ चेंज होना चाहिए। तो उम्र के साथ आपके पैरामीटर्स भी बदलने चाहिए, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन ना, ये एक बहुत बड़ा खतरनाक खेल है, ये एक गलत सोच से आया। ठीक है ना, ब्लड प्रेशर 120/80 ही चाहिए सबको, है ना, जबकि उम्र के साथ ये बढ़ना चाहिए। नहीं बढ़ रहा तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। भाई बढ़ नहीं रहा मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी उम्र ज्यादा बढ़ गई, सब गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो आपको सोचना पड़ेगा अपने शरीर का मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ यानी रीजनरेशन की कैपेसिटी, आपको आपका शरीर ठीक करता। आज तक कोई दवाई नहीं बनी जो आपको ठीक कर सके, ना बनेगी आगे चल के, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो हर्बल हो, वो सपोर्ट कर सकता है आपको ज्यादा से ज्यादा, मगर रिकवर आपकी बॉडी करती है। जब आपको इन्फेक्शन होता है तो मारने के लिए, इन्फेक्शन को मारने के लिए आप कोई एंटीबायोटिक खाते हो, मगर फिर रिकवर कौन करता है? मारता है वो, तो रिकवर कौन करता है? आपका शरीर रिकवर करता है। 70% बीमारी की कोई दवाई नहीं है, मगर फिर भी जिंदगी भर दवाई खा रहे हैं ना हम। कोई दवाई नहीं है, अगर आप नहीं खाते तो शरीर रिकवर कर देता, ठीक हो जाता, मगर दवाई के कारण वो रिकवर नहीं कर पाएगा, जिंदगी भर रिकवर नहीं कर पाएगा अपने आप। ये सब चीजें हमको सोचना पड़ेगा। जीवन जिस तरीके से चलता है उसे साइंस कहते हैं, ना कि किसी ने बोल दिया उसको साइंस कहते हैं। जैसे जीवन चलता है वो रियल साइंस है, और उसको हम डिकोड 1% भी नहीं कर पाए, मगर क्लेम करते हैं कि इलाज हमको ही करना। तो ये गलत चीज है। आप अपने शरीर का रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, इम्यूनिटी को बैलेंस कीजिए, वो आपका शरीर ही कर सकता। और वो मैं एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं कि फंडामेंटली आपका टॉलरेंस, आपकी सांस रोकने की क्षमता ही बढ़ाएगी। कुंभक आप दिन रात कर रहे हैं, एक ऐसा टाइम कुंभक के बगैर आप हिल भी नहीं सकते। कुंभक आपके जीवन को चलाने का मूलभूत नियम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आप हाथ से जोर लगाएं, खींचें, पुश करें, कूदें, आप सांस रोक के ही करते हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, घर के कामकाज, सीढ़ियां चढ़ना, चेयर से उठना है, क्या हुआ? सांस रोक ली थोड़ी सी। बिना सांस रोके तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपके कुछ करने की क्षमता कम हो गई तो इसका मतलब है आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो गई। सीधी सी बात है, इतना आसान तरीका है। आप लोग भारतीय समझदार हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप पढ़ लिख गए हैं। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें, और अपने शरीर को क्रिमिनल ना बनाएं। इसके काम करने की क्षमता बढ़ाएं, यानी कि इसके कुंभक की क्षमता बढ़ाएं। आप देखेंगे आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बहुत एम्पावर हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि देखिए इन्फेक्शन से आप बच नहीं सकते, आएगा ही, मगर कुंभक कर रहे होंगे, इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक होगा। क्रॉनिक डिजीज रिवर्स होंगी, आपको सिम्टम नहीं आएंगे। जो प्रॉब्लम जिस शुगर लेवल से आ रहा है उस शुगर लेवल से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ब्लड प्रेशर से जो नुकसान होना चाहिए वो नहीं होगा। ये आपका शरीर कर सकता है और कोई दवाई नहीं कर सकती। तो अपने शरीर की क्षमता बढ़ाइए, इसकी रीजनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ाइए, इसका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ाइए, इसका इम्यून स्ट्रेंथ को बैलेंस कीजिए, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं 100% गारंटीड। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपका शरीर हर बीमारी से निकलने के लिए सक्षम होता है। वो डिजाइन ही ऐसा किया गया, लाखों सालों से इसको ये बीमारियां नहीं हुई, ये तो पिछले 100-200 साल की प्रॉब्लम है। तो यानी ये सक्षम था किसी भी प्रॉब्लम से अपने आप को निकालने में, और वो उसका नियम, मूलभूत नियम मैं आपको सिखा रहा हूं। कुंभ ओके, नीति जी राइट्स एहलर्स डैनलस सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? एहलर्स डैनलस सिंड्रोम। आप थोड़ा ना इजी भाषा में ये, या तो उसको डिफाइन कर दो, या तो आपकी प्रॉब्लम आपको क्या फील हो रही है वो बताइए, वो सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा कोई ग्रीको रोमन शब्द बोल के ठीक तो हुआ नहीं आज तक कोई, मतलब फैशन में है ये बात अलग है,
मगर क्या है, ऐसे सिंड्रोम बोल बोल के, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? सिंड्रोम का मतलब होता है हमें नहीं मालूम ये क्यों हो रहा है। एक्चुअली सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि उनको मालूम ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। स्पेलिंग क्या है इसकी? या तो आप लिख दीजिए आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, सीधी सी बात। आपके एक्सपीरियंस में जो प्रॉब्लम है सबसे फर्स्ट क्लास डायग्नोसिस होता है। नीतीश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताइए। कनेक्टिव टिश्यू को अगर देखिए, आप जो सिंड्रोम बोल रहे हैं ना, वो बेसिकली ऑटो इम्यून सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसके बारे में ही तो मैंने अभी बताया। सर ये सिंड्रोम बचपन से है, मुझे बाय बर्थ है, ओके, as per doctors, and by birth my skin is loose, मतलब नॉर्मल जितनी किसी में भी होती है, मेरी उससे ज्यादा स्ट्रेच होके बाहर आती है। और बचपन से ही हार्निया है, बचपन से ही कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की वजह से पीएमडी इन आईज है, विच इज केरेटोकॉनस ग्लोबस रादर। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि at now I'm at the age of 41, so it is not that something I have discovered in last 5-7 years. It is something that I have been diagnosed since my birth. And ओके, as per doctors, this is what the name they say. And as per हाँ, हाँ। doctors, उन लोग ने बताया कि ये आपको है और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। Now, when I saw the webinar at the start of it, it was mentioned, which is rare. Like when I talk to doctors since my childhood, मैं अभी जब भी किसी इवन आईज के लिए भी मैं डॉक्टर से बात करती हूँ तो उनके कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये कौन सा है? So when I saw this in the list, I found it's rare. Nobody even knows about it. How can you think of curing it? So that's why my curiosity was there and I wanted to know more about it. Do you want to know about it? Do you want to know about why this is happening? One, that why it is happening. I have been the chosen one since my birth. And second is, since I have been chosen one since my birth, I have been dealing with many things since my childhood. Many things like बचपन में जॉइंट डिसलोकेट हो जाता था चलते चलते अपने आप ही। समझ गया। एल्बो निकल के हाथ में, मतलब एल्बो निकल जाता था और वो ऐसे ठोक के आप दबा के उसको एक जगह पे ले आते थे। हाँ, फिर किसी देसी जो जानते थे लोग, क्योंकि डॉक्टर्स वो नहीं कर पाते थे, कोई बुजुर्ग थे बचपन में, वो उसको वापस रीलोकेट कर पाते थे। और थिंग्स लाइक हार्निया है, अभी राइट नाउ आई हैव hiatus hernia. I have already been operated for 2 hernias. I have already been operated for inguinal and now I have hiatus. Hiatus की वजह से अभी मुझे heartburn, hypothyroidism और ये गले में lingual tonsil तक डेवलप हो गया है। तो मैं खुद अभी एलोपैथी में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहती हूँ या नहीं बिलीव करना चाहती हूँ। चलिए देखिए, हाँ, पहली बात तो आप ये आइडिया नहीं लगाएं कि हाइटस हर्निया से आपको हार्टबर्न, ये किसी ने बोल दिया। नहीं, डॉक्टर सेड सो, नॉट मी। हाँ, डॉक्टर सेड, बट डॉक्टर डजंट नो दिस व्हाई दिस हैपेंस, योर कंडीशन। डॉक्टर्स ऑलवेज से कि अब आपको तो होगा ही, क्योंकि आपको एलर्स लॉस है, आपको आईज में मैकुलर डीजनरेशन ऑफ टिश्यूज, पीएमडी होगा ही, पैलिसिड मैकुलर डीजनरेशन, बिकॉज आपको Ehlers-Danlos hai. And when I researched over internet, I found that Ehlers-Danlos has many types, and the type that I have has all these things listed that is there happening with me. आपका सही क्वेश्चन है कि मुझे क्यों Ehlers-Danlos है, ये किससे पूछा आपने? सर वो तो बाय बर्थ बोलते हैं, इट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। अब देखिए, नहीं, बाय बर्थ क्यों है? अब मैंने जो समझा है अब तक वो ये है कि द प्रोटीन कोलेजन में व्हेन आई वाज बोर्न, तो कुछ तो गड़बड़ वहां या मतलब कम ही रही, is because of that Ehlers-Danlos has developed, but this is something I came to know about through whatever research. Okay, देखिए ये ना घूमता जाएगा इस तरीके से, मैं आपको सीधा बताता हूँ क्यों है। हाँ जी, चलेगा ना? चलेगा। ये प्रोटीन में कुछ कमी क्यों रही? मैं तो फिर क्वेश्चन पूछ लूंगा। मुझे अब ये बाय बर्थ से पहले की चीजें तो पता ही नहीं हो सकती। नहीं, बाय बर्थ से पहले की चीजें नहीं पता, मगर बाय बर्थ से है ये कौन सी गारंटी है?
एक्चुअली हम Sir, सब those आइडिया were लगा रहे the, हैं। there were facial features and the features in the body which help the doctor diagnose it कि आपको मतलब ये पहले मेरी बचपन में ही बता दिया था, हार्ट में होल था। देखिए, skin बहुत मैं इस बात glossy को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं कि किसी ने आपको कुछ बता दे। मैं भी कह सकता हूं कि एक्चुअली एक प्रेतात्मा ने ऐसा करवाया है आपके साथ में, इसीलिए ऐसा हुआ। बर्थ के टाइम पे ऐसा प्रेतात्मा ने करवा दिया। ये सब कहानियां ना, देखिए, सुपरस्टिशन है। ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, ये सुपरस्टिशन है। मैं ऐसे तो मैं भी आपको बता दूं कि पता है क्या हुआ था, आपकी मां डर गई थी, भूत का डर लग गया था, खराब मूवी देख रही थी वो, इस वजह से आपको ऐसे ही सब बातें बोल के ना नहीं ठीक करने का हमको बहाना मिलता है। अगर सच में डायग्नोसिस कर पाए तो ठीक कर पाएंगे ना। और सिंड्रोम क्यों बोल रहे हैं फिर? क्योंकि सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि हम ठीक नहीं कर पाएंगे, हमें मालूम ही नहीं क्यों होता। सिंड्रोम का रियल मीनिंग क्यों डालते हैं किसी के पीछे सिंड्रोम? क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि क्यों हुआ, मगर कहानियां बनाने में बहुत बहुत आगे हैं। सुपरस्टिशियस लोग हैं, क्या करें, फिरंगी हैं ही सुपरस्टिशियस। अब आपको मैं इसका सीधा रीजन बताता हूं। हमारे शरीर में दो फिक्स रीजन बता रहा हूं मैं आप। हमारे शरीर में दो तरीके की स्ट्रेंथ होती है। पहली स्ट्रेंथ, इसे कहते हैं नाग शक्ति या नाग वायु। ये कैसी शक्ति है? आपके शरीर में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट का स्ट्रेंथ। कोई भी शरीर में मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल होता है। ब्लड का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, लिम्फ का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, हार्मोन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। सिमिलरली, जब यूनिडायरेक्शनल फ्लो का स्ट्रेंथ, उस फ्लो को आगे बढ़ाने का स्ट्रेंथ, इसके लिए हम एक स्पेशल प्रोसेस देते हैं। जो नाग शक्ति जिसकी कमजोर होगी, उसके स्किन में प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, कोई दवाई खा लो, स्टेरॉइड खिलाते रहेंगे फिर जिंदगी भर, क्योंकि वो नाग शक्ति आप जब तक बिल्ड नहीं करेंगे वो चीज खत्म ही नहीं हो। क्योंकि स्किन का फॉर्मेशन ही तभी होता है, जैसे मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप 6 लेवल पे आपका मेटाबॉलिज्म होता है। और स्किन जो है ना, वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लास्ट में स्किन बनता है। तो नाग शक्ति हम स्पेशल प्रोसेस देते हैं। कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो नाग कुंभक हम देते हैं करने के लिए। दूसरा पार्ट इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ योर टिश्यूज एज वेल एज ऑफ योर बॉडी। आपके स्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करने की जो शक्ति है, इसे कहते हैं व्यान शक्ति। तो हम आपको कुछ सिखाते हैं, उसमें 3 पार्ट्स में बांटते हैं, अंगन्यास, मर्म विन्यास, कुंभक थेरेपी। कुंभक थेरेपी भी 3 हिस्से सिखाते हैं, 3 चीजें सिखाते हैं उसमें ना। लास्ट पार्ट आता है व्यान क्रिया कुंभक, यानी कि आपके शरीर का स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, चाहे वो हड्डियों की हो, चाहे वो मसल्स की हो, चाहे स्किन की हो, चाहे आपके नर्वस सिस्टम की हो, वो शक्ति अगर आप बढ़ा सकेंगे तभी आपकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी लूज जॉइंट्स जो होंगे ना, वो उनमें स्ट्रेंथ आएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल अभी जो मैंने दिया था, वो एक्चुअली मैंने इसी चीज का एग्जांपल दिया था। इनहेलेशन फॉर अ सर्टेन पीरियड, 4 times hold and twice of the inhalation if you will be able to exhale with ease। अगर ये प्रैक्टिस कर लें तो आपका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। इसका मतलब आपके जॉइंट्स को आप ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। कितना बढ़ा पाएंगे ये स्ट्रेंथ डिपेंड करता है आप कितना कमिटेड हैं, कितने लंबे समय की बीमारी है आपकी, कितना आपका मोमेंटम है डिजीज का, कितनी दवाइयां खाई हैं आपने इस अपने शरीर को नुकसान करने के लिए, तो उस पर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा आपको पूरा रिकवर करने में। मगर आप रिकवर कर सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूं। तो अगर हम ये नाग शक्ति आपके बॉडी की ठीक कर दें तो आपका स्किन का फॉर्मेशन अच्छा हो जाएगा। तो स्किन का इश्यू जो होगा वो स्लोली, लेकिन स्किन का इश्यू हमेशा टाइम देता है, ये स्लोली रिकवर होगा। अच्छा, केवल यही स्किन का हम एड्रेस नहीं कर रहे, हम आपके रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहे हैं, हम आपका मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। सीधा सीधा अगर कोरिलेट करना चाहें तो हम आयुर्वेद में कहते हैं जठर अग्नि। डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? जठर अग्नि। अग्नि यानी हीट है ये एक तरीके का। आप कुंभक करें कुछ देर, उसके बाद देखेंगे आपको पसीना आने लग जाए।
जो बॉडी की हीट प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, जो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ थी, उस पर हम काम करने लगे। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे आपके सिम्टम खत्म हो जाएंगे जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के हैं, वो सिम्टम कम हो जाएंगे। आप लेवल चेक करोगे फिर गड़बड़ा। सेम जरूरी नहीं कि हर एक का लेवल हमको खींच के नीचे ही लेके आना है, जीना मुश्किल हो जाएगा। ब्लड प्रेशर आप कम कर लीजिए, आप हाथ में ग्लास नहीं उठा पाएंगे, पकड़ आपकी खत्म हो जाएगी। तो हम आजकल सब कुछ कम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपने जीवन को ही हम बिल्कुल बौना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज नॉट द राइट थिंग। आप टॉलरेंस बढ़ाइए, आप अपना रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाइए, उसके बाद आप कुछ भी करिए, कुछ भी खाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो भी बढ़ा रहे हैं, मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे। होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। तो एक तरफ जैसे कि आपका लिवर बिना हार्ट के काम नहीं करता, आपका हार्ट बिना किडनी के काम नहीं करता, आपका किडनी बिना लंग्स के काम नहीं करता। तो एक होलिस्टिक अप्रोच भी होना चाहिए, साथ में एक स्पेसिफिक अप्रोच, एक प्रिसाइज अप्रोच भी होना चाहिए। ये दोनों को हमने कंबाइन करके मॉड्यूल बनाया। तो आपको एक जेनरिक मेथड सिखाते हैं, उसके बाद आपका डायग्नोसिस करते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक मेथड दे देते हैं। वो जो पूरे मेथड को उसको आपके हिसाब से हम कस्टमाइज कर देते हैं। ये कुछ समय तक अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके कई सारी प्रॉब्लम आप देखेंगे जो आपको मालूम भी नहीं है। शायद ऐसे लोग आते हैं कहते हैं इसके लिए मैंने ये ज्वाइन भी नहीं किया मगर ठीक हो गया, क्योंकि हम आपके पूरे सिस्टम को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के समय पे जब हर चीज आपके सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है तो आपको कुंभक कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी खा के तो ठीक नहीं हो सकते। आप अच्छा भोजन करके मैराथन तो नहीं दौड़ सकते ना। तो आपकी जो बॉडी फंडामेंटल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी है उसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उस पर जरूर काम कीजिए। जब आपका भोजन भी आपके शरीर को बिगाड़ रहा है, आपकी दवाई आपके शरीर को बिगाड़ रही है, आपका एनवायरमेंट शरीर को बिगाड़ रहा है, आपका लाइफस्टाइल शरीर को बिगाड़ रहा है, तो इसको वापस से रीस्टैब्लिश करने की जरूरत है। वो हम कर रहे हैं। और इतना मैं आपको बता दूं, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम शायद जिसका समझ भी नहीं है, मैं स्पेसिफिक बताया मैंने, आपको शायद समझ में नहीं आया क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हो इस चीज में। मैं कहूंगा ये नागशक्ति, आपने कहा ये कहां पे है, ये मैंने पढ़ा ही नहीं। पढ़ाई से कोई थोड़ी ठीक हो जाता है, नाम रखने से थोड़ी ठीक हो जाता है कोई। ये मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सिम्टम चले जाएंगे, एलएस डैनलोस बोल के कोई थोड़ी ठीक हो जाता है। ये तो फैंसी टर्म है, नाम रख देते हैं। केवल ग्रीको रोमन लोग हैं, वो शब्द रखना चाहते हैं, वो नाम रख देते हैं, मगर ठीक नहीं कर पाते। तो ये दो चीजें अगर आप बढ़ाएंगे, आप देखेंगे आपको बहुत सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी बॉडी बहुत रिकवर कर जाएगी इस स्थिति से। अच्छा, इसके अलावा हैविंग सेड इट, इसके अलावा जेनेटिक डिजीज है जी, तो जेनेटिक चेंज नहीं होता क्या? हम कहते हैं कि भाई डायबिटीज जेनेटिक है। 100 साल पहले आपके पूर्वज को डायबिटीज थी क्या? 2 जनरेशन पीछे जाके देखिए, थायराइड था क्या? आपकी दादी नानी को थायराइड था? तो आपको क्यों हो गया? हो सकता है आपकी माताओं को, मगर जेनेटिक्स तो हमने बनाया। और 99% ऑफ द जेनेटिक्स कैन बी चेंज्ड। ये मॉडर्न रिसर्च है, इसे एपीजेनेटिक्स कहते हैं। मगर कैसे करेंगे? उसमें भी 2 अप्रोच है। एक अप्रोच क्या है जो मॉडर्न साइंस ले रहा है? क्या ले रहा है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये टर्न ले रहा है। अगेन अ वेरी वेरी ग्रेट ब्लंडर। मैं अभी बता रहा हूं, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को साइंस में आगे आना पड़ेगा, क्योंकि साइंस केवल भारतीय हैंडल कर सकते हैं, फिरंगी नहीं हैंडल कर सकते। जेनेटिक इंजीनियरिंग या स्टेम सेल थेरेपी जिसे आप कहते हैं ना, ये पूरे ह्यूमन जीनोम को डिस्टॉर्ट कर देगा। वो हो ही चुका है। पिछले 100 साल में अगर देखें तो मानव जेनेटिक्स डिस्टॉर्ट हो ही चुका है, उसको और डिस्टॉर्ट कर देगा। दूसरा तरीका क्या है? आप नेचुरल ट्रिगर दीजिए स्टेम सेल्स को जो आपके शरीर के अंदर है। शरीर के अंदर ट्रिगर आप कैसे देंगे? कुंभक एक तरीका है जिसको मैं कहता हूं एपीजेनेटिक ट्रिगर। इसी से आपके कर्म बनते हैं, इसी से आपकी जेनेटिक्स बनती है, तो इसी से आप जेनेटिक्स बदल भी सकते हैं। आप एफर्ट डाल के ही जेनेटिक्स बदलते हैं। कुंभक इंटरनल एफर्ट है, इसीलिए ये एपीजेनेटिक ट्रिगर है। तो क्या जेनेटिक्स बदल सकता है? 100% बदल सकता है। मगर आप
दर्द की दवाई का इंप्रेशन लेके मत बैठिए कि आपने पिल खाया 30 मिनट के अंदर चीजें ठीक हो गई। दर्द की दवाई के अलावा कौन सी दवाई काम करती है बता दीजिए। इंप्रेशन हर चीज का हमारे को दर्द की दवाई का ही है। तो 30 मिनट में ना तो शरीर पैदा होता है और ना शरीर बढ़ता है, तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। जितना हमने इसको डिविएट कर दिया, पुश कर दिया, टॉर्चर कर दिया, उससे निकालने के लिए भी आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आम खाना है तो 5 साल बीज लगाने के बाद में हमको वेट करना पड़ता है। हाइब्रिड आम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड आम खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, फिर कौन ठीक करेगा। तो वैसे ही आपके शरीर पे काम करना सबसे जरूरी पार्ट है इस वक्त में, क्योंकि आप बाकी चीजों का डिविएशन रोक नहीं सकते और ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। Rupa Venkatesh writes, I had cancer, recovered, then I had liver disease and went through liver transplant. पहली बात, there is nothing called cancer recovery. ये एक तरीके का, क्या कहते हैं उसे, डेजर्ट में वो बनता है ना मिराज, ये मिराज है। आपने कैंसर आपके बॉडी में ठीक नहीं हुआ है, आपने केवल कैंसर सेल को हटाया है। कैंसर बनने की प्रवृत्ति को आपने नहीं बदला है। ठीक है, तो 2 साल 3 साल 4 साल, डिपेंडिंग अपॉन ईच पर्सन बॉडीज एबिलिटी टू हैंडल अ पर्टिकुलर स्टेट और द बॉडी स्ट्रेंथ, रिलैप्स बहुत हो रहा है और आगे आने वाले समय में रिलैप्स की फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों इतना तेजी से आगे बढ़ेगा, टाइम कम होता जाएगा। ये आप देखिए अगले 10 सालों में 12% के रेट से कैंसर बढ़ रहा है। अच्छा, अब एक और मजेदार चीज बता रहा हूं। लिवर खराब है तो लिवर ट्रांसप्लांट कर लीजिए, घुटने खराब है तो घुटने बदलवा लीजिए, किडनी खराब है तो किडनी ट्रांसप्लांट कर लीजिए, हार्ट खराब है तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर लीजिए। मुझे बताइए ठीक क्या करते हैं आप? ठीक तो कुछ करते ही नहीं, क्योंकि दवाई से ठीक होता ही नहीं। तो क्या ये अच्छी चीज है? देखिए, एक तरफ में हम ये कह सकते हैं कि ये अच्छी चीज है क्योंकि जिसको जरूरत है उसको मिल रहा है, मगर जरूरत बनाया ही क्यों? पहली बात तो, क्या 200 साल पहले ये होता था लिवर ट्रांसप्लांट? 100 साल पहले लिवर ट्रांसप्लांट होता था? तब लोग जीते नहीं थे। 1000 साल पहले तो शायद कुछ भी नहीं होता था, लेकिन लोग ज्यादा हेल्दी थे। तो हमें ये सोचना पड़ेगा, बीमारी क्रिएट करके बीमारी का इलाज कुछ भी क्रिएट कर देना, ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है। अब रही दूसरी बात, जब भी आपने ट्रांसप्लांट कराया तो आपका शरीर उस नए लिवर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो क्या करना पड़ता है? आपकी इम्यूनिटी को, यानी आपके शरीर की क्षमता को, कि वो जो अलग चीज है, नई फॉरेन बॉडी है, उसको अटैक करने की क्षमता को खत्म करना पड़ता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को खत्म करना पड़ता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड ट्रीटमेंट दिया जाता है। इम्यूनिटी आपने खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल, अब आपके पास में आपका शरीर और ज्यादा वनरेबल हो गया, नॉट ओनली कैंसर बट मल्टीपल डिसऑर्डर के लिए। तो क्या जरूरी नहीं है कि आप अपना रिहैबिलिटेशन, यानी बॉडीज ओन रिकवरी स्ट्रेंथ को वापस से स्थापित करें? क्या और लाजमी नहीं है? क्या और जरूरी नहीं हो गया? जो लोग भी दवाई खा रहे हैं, दवाई से जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए कुछ तो काम करना चाहिए आपको अपने बॉडी पे। अगर आप सर्जरी के थ्रू गुजरे, सर्जरी से जो आपके बॉडी के या उसके ट्रीटमेंट से जो नुकसान हो रहा है उसको रिकवर करने के लिए तो आपको कुछ करना ही चाहिए। कैंसर की जो टेंडेंसी है बॉडी की, जो रिकग्निशन फैक्टर है बॉडी का, जो कॉग्निशन है, उसको आपको बढ़ाना तो पड़ेगा। और ये रिकग्निशन या कॉग्निशन बॉडी का कैसे बढ़ता है? आप याद करते हैं किसी चीज को तो आप क्या करते हैं मालूम है? जब आप फोकस करते हैं किसी चीज पे, आप सांस रोक लेते हैं, मालूम है आपको? धीरे कर देते हैं, ब्रेथ को रोक लेते हैं।
इससे आपके बॉडी की कॉग्निशन फैक्टर, जो मेमोरी है, टिश्यू बनाने की मेमोरी, सेल बनाने की मेमोरी, जो कि खराब सेल बना रही है वो, ठीक है ना, उसको तो बढ़ाना पड़ जाएगा ना, वो तो दवाई से नहीं बढ़ेगा, वो तो आपके बॉडी का ही अपनी शक्ति है, एबिलिटी है, और वो आपके बॉडी की एक्चुअली कुंभक एबिलिटी है। अगर उसको बढ़ाएंगे तो ये देखेंगे कि आप कम से कम रिलैप्स को आगे पोस्टपोन कर सकते हैं। हो सकता है 5 साल में रिलैप्स हो जाए, 5 साल की जगह अगर सपोज कीजिए आपके पास में ये 7 साल पहुंच जाए, 5 साल छोड़िए 7 साल, अगर 1 महीना भी अगर अपनी लाइफ आप बढ़ा सकें, 1 घंटा बढ़ा सकें, तो क्या नहीं करना चाहिए? वो तो करना ही चाहिए ना। और हो सकता है कि रिलैप्स को, क्योंकि आपके अंदर अगर बॉडी की रिकवरी स्ट्रेंथ को आप ज्यादा बढ़ा पाए, हो सकता है आप इसे पूरी लाइफ लॉन्ग इसको रिलैप्स को पोस्टपोन कर पाए। तो कुंभक कैपेसिटी यानी बॉडी का अपनी क्षमता, नए टिश्यू बनाने की, भोजन को इस्तेमाल करने की, है ना, जो नुकसान हुआ उससे रिकवर करने की, ये सब क्षमता आपको बढ़ाना ही चाहिए। ये जरूरी है। जो भी इस तरीके से इस प्रोसीजर, ऐसे प्रोसीजर के थ्रू गुजरे, उनके लिए जरूरी है कि वो अपनी काम करके, अपने शरीर पे काम करके अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधारें, अपना प्रोग्नोसिस अच्छा करें। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपने बॉडी पे कुंभक के जरिए काम करें। Same, Rupa ji again writes, have been without cancer for 14 years. My question is, I take immunosuppressants, so will Kumbhak work? One more thing, कैंसर का डायग्नोसिस बहुत डाइसी है। अगर आपको डायग्नोस किया गया कैंसर के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको कैंसर हो, क्योंकि कैंसर का डायग्नोसिस ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन के आधार पे एक आइडिया लगाया जाता है। कैंसर का कोई डायग्नोसिस होता नहीं है। अगर ट्यूमर है और वो मेटास्टेसिस उसका हो गया, बढ़ रहा है, तब तो हम मान सकते हैं कि चलो ये हो सकता है कैंसर। जरूरी नहीं है, हो सकता। मगर ज्यादातर कैंसर आज के टाइम पे लिम्फ के कैंसर निकल रहे हैं, लिम्फ ग्लैंड के, और या टिश्यू का, जो इंटरनल टिश्यू का है, वो केवल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इसका मतलब कैंसर है। मैं आपको कैंसर बनाने का तरीका बहुत बता सकता हूं। आप राइट हैंड से डंबल लीजिए और खूब सारी एक्सरसाइज कर लीजिए और जाके कैंसर टेस्ट करा लो, आपके राइट हैंड में कैंसर आ जाएगा। क्योंकि राइट हैंड में आपने ग्लूकोज ज्यादा खपत कर ली, जला लिया, अब बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो जैसे ही आपके अंदर वो रेडियो एक्टिव ग्लूकोज डाला जाएगा, वो राइट हैंड एब्जॉर्ब करने लग जाएगा और आपको बोला जाएगा आपके राइट हैंड के टिश्यू में कैंसर है। ये बड़ी डाइसी चीज है, बड़ा क्वेश्चनेबल चीज है कि कैंसर का कोई एक्चुअली में डायग्नोसिस होता नहीं है, केवल एक अंदाजा है। रेडियो एक्टिव ग्लूकोज आपके बॉडी में डाला जाता है, उसके बाद देखा जाता है जहां ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो शायद वो कैंसर। और सभी मेटफॉर्मिन खा रहे हैं ना, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइकोलाइड, रोज़िग्लूटाथोन, डायबिटीज के मरीज, सोचिए आपका ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन तो डिविएट वैसे ही हुआ पड़ा है, तो सब एक सब्जेक्ट बन गए ना कैंसर के। तो आपने बोला मुझे 14 साल से कैंसर नहीं हुआ, आपको पहले था क्या? ये तो आप सोच रहे हो। क्वेश्चन, सही सवाल पूछिए। अर्जुन कृष्ण भक्त था, लेकिन जब कृष्ण समझाने लग गए तो अर्जुन केवल और केवल सवाल पूछा। ये भारतीय संस्कृति है, ये साइंटिफिक संस्कृति है, पर आपने सुपरस्टिशन को साइंस बना के अपने मान लिया, अपने अंदर मान लिया। वो सब नहीं चलेगा। आगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, कुछ गलत बोलेंगे तो लोग तो आ ही जाएंगे सामने सवाल पूछने के लिए। तो अगले 10 साल 15 साल में आप देखेंगे पूरी दुनिया में जिस तरीके से वो थेरेपी कह रहे हैं, ट्रीटमेंट कह रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। हर ट्रीटमेंट, एक नहीं, हर एक ट्रीटमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ओके, ये बात, एक पॉइंट जो था, जब कहा कि इतने टाइम तक है, तो आपको कैंसर पहले भी नहीं था, हो सकता है ऐसा?
Birendra Pandey ji writes, I think face-to-face teaching techniques of yoga, kumbhak, medicine, etc. will be helpful for patients rather than online course or demonstration. फेस टू फेस टीचिंग के साथ में ना एक इशू है. वो इशू ये है कि विल रीच टू अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल. अच्छा, इसका मैंने ये देखा है कि फेस टू फेस सिखाना और ऑनलाइन सिखाना, इसमें मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया. आई यूज्ड टू डू विद फेस टू फेस, बट मुझे लगा जब मैंने इसको ऑनलाइन के लिए डिजाइन किया तो पता चला ऑनलाइन सीखने में और फेस टू फेस सीखने में दो चीजों का फर्क है. फेस टू फेस में आपको ट्रैवल करके किसी जगह पे आना पड़ेगा, किसी प्रेमाइसेस की कॉस्ट होगी, कोर्स की वैल्यू, कोर्स फीस बहुत बढ़ जाएगा, आपका टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाएगा. दूसरी चीज, ऑनलाइन सिखाने पे इसकी कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, वेट नहीं करना पड़ेगा, या फिर आपको जो ट्रैवल कॉस्ट है वो भी नहीं डालना पड़ेगा, बेयर करना पड़ेगा. तो कॉस्टिंग कम कर सकते हैं और ज्यादा लोगों को हम हेल्प कर सकते हैं. तो कुंभक एक ऐसी चीज है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई एनानमस चीज नहीं है. जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छा जी आप एक काम करो कि अनुलोम विलोम करिए, तो अनुलोम विलोम 10 लोगों को कराएंगे ना, तो वो 10 तरीके से करेंगे. तो उसमें क्या होता है, एक गाइड होगा ना सामने, तो वो थोड़ा अपने आइडिया से उन लोगों को करेक्ट करवाएगा. लेकिन अगर मैं आपको यह बोलूं कि 4 गिनती की सांस भरें, 16 गिनती की रोकें, 12 गिनती की छोड़ें, जो सेकंड के हिसाब से करें, तो सभी एक ही चीज कर रहे होंगे. हाँ या ना? आप लोग सब समझदार हैं. तो ये इतना हमने इसको प्रिसाइज बनाया हुआ. दैट इज वाई वी डोंट नीड एन इंस्ट्रक्टर. हमें चाहिए ही नहीं. ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे, उनको हम डायग्नोसिस दे पाएंगे ज्यादा लोगों को, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर की सहूलियत में करें. और ऐसा भी नहीं होगा कि आप क्लास में गए फिर चले गए, अब तो जो मेंटर है, जो टीचर है, उसके साथ तो अगली क्लास में ही बात होगी. नहीं साहब, आपको वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस का वीडियो मिलेगा, जब मर्जी देखो, आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा हिंदी इंग्लिश आपकी लैंग्वेज में, आप जब मर्जी पढ़िए, जब भी प्रैक्टिस करें, वीडियो देख के प्रैक्टिस करें. फिर हम अलग से प्रैक्टिस सेशन भी करते हैं जिसमें आप डाउट पूछ सकते हैं. एक तरीके से ये कहिए कि 24 घंटे हम आपके साथ में हैं, जो कि ऑफलाइन कतई नहीं हो सकता. तो हम और अच्छे से आपकी सेवा कर सकते हैं ऑनलाइन. इसीलिए ऑनलाइन क्या है, आप 7 दिन आप सवाल पूछ सकते हैं, किसी टाइम, सुबह से लेके शाम तक, जब तक आप जगे हुए हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा. आपके फोन में, लैपटॉप में हर टाइम पे वो वीडियो अवेलेबल होगा, जो ऐप में हम डाल के रखेंगे वो वीडियो अवेलेबल होगा. आप जब मर्जी देखिए, जितनी बार देखिए, जितने टाइम देखिए. तो टेक्नोलॉजी जो है ना, इनेबलर होता है. उसको थोड़ा थोड़ा नहीं मालूम है, हो सकता है सपोर्ट ले लीजिए. घर में कोई यंगस्टर है, कोई बच्चा है, उससे थोड़ा पूछ लीजिए. कभी थोड़ा नहीं हो रहा तो हमारे पास में हमेशा हेल्प है, जिससे आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हैं. जब इतनी आसान चीज इतने अच्छे से की जा सकती है, तो मुश्किल वाले पार्ट में क्यों जाए. Sanjay Pandey ji writes, having anxiety and insomnia for last some years, taking psychiatric medicines since last 1 year, will Kumbhak therapy help? Has psychiatric medicine helped anybody in the world? क्या आपको मालूम है मेंटल डिसऑर्डर का कोई भी दवाई नहीं होती है? रादर आप दवाई खा के अपने शरीर में ठीक होने की क्षमता को भी खत्म कर देते हैं. तो दवाई मैनेजमेंट, इंटेंस मैनेजमेंट जिसे हम कहते हैं, एक्यूट मैनेजमेंट के लिए तो चलो ठीक है, मान लिया, मगर वो शॉर्ट टर्म ही होता है. लॉन्ग टर्म दवाई इज नॉट अ ट्रीटमेंट. ये आपको पहली बात समझना पड़ेगा. दूसरी बात, जब माइंड का डेफिनेशन ही नहीं है,
जब माइंड किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या होता है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। इंसोम्निया आपने बोला और एंजाइटी बोला, दो चीजों को लेके पहले समझ जाइए। फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट अंडरस्टैंड। कोई पैसा तो नहीं लग रहा समझने में, हम बैठे हुए हैं आपको ज्ञान देने के लिए, समझाने के लिए, और वही प्रैक्टिकल तरीके से आपके एक्सपीरियंस के थ्रू समझा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है ग्रीको रोमन शब्द ला रहे हैं बीच में। तो पहली बात आप समझिए, तो जब भी आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं किसी बस में और खड़े हैं और किसी बस के खंभे को पकड़ रखा है आपने, और बस प्लेन में जा रही है, तो खंभा छोड़ दीजिए, बैलेंस में रहेंगे। लेकिन सपोज करो गड्ढे आ गए, तब क्या करेंगे आप? उस खंभे को कस के पकड़ लेंगे, उस पोल को कस के पकड़ेंगे ना। अगर कस के पकड़ेंगे, अब मुझे बताइए कि अपने अंदर, आपके अंदर खलबली मच रही है, सिस्टम ईज में नहीं है, आराम में नहीं है, स्मूथ रनिंग नहीं हो रही, हार्मोन इंबैलेंस, ब्लड का फ्लो ठीक नहीं है, एंजाइटी, स्मूथ रनिंग नहीं हो रही अंदर, तो आपका शरीर अपने आप को कस के पकड़ता है। खतरा है ना, खतरे के टाइम पे आप सो नहीं सकते, यानी शरीर को छोड़ नहीं सकते, पकड़ के रखना पड़ता है। दिमाग ऊट पटांग चलता रहेगा। सोएंगे तभी ना जब आप छोड़ पाएंगे अपने आप को, जब स्मूथ रनिंग होगी। इसका एक एग्जांपल आप तो अपनी सांसों में देखिए, उखड़ी होती है सांस दोनों केस में, जब एंजाइटी होता है, इंसोम्निया होता है, उखड़ी होती है सांस। ये इंडिकेटर है कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी चीज स्मूथ, आराम से नहीं चल रहा। तो नींद कैसे आएगी बताइए? दवाई खा के बेहोश करके अपने आप को, अगर आप सो भी जाते हैं तो स्मूथ रनिंग तो नहीं किया ना आपने। जो असली बीमारी है उसको तो ठीक नहीं किया आपने, आपने बेहोश कर दिया। वो तो डंडा मार के भी हो जाएगा, जोर से खोपड़ी पर डंडा मारे बेहोश हो जाएगा इंसान, तो क्या वो सो गया क्या? ऐसे ही आपको झटका, आपके नर्वस सिस्टम को डंडा मार दिया गया अल्प्राजोलैम देके, या इसी तरीके से जोलाम कोई दवाई होगी, तो क्या वो ट्रीटमेंट है? वो ट्रीटमेंट तो नहीं है। हाँ, बहुत एक्यूट कंडीशन है, नहीं हो पा रहे, बहुत परेशान हो गए, उस समय आपने दवाई लेके सो गए, चलो मान लिया, एक्सेप्टेड, बट ट्रीटमेंट तो करो, ट्रीटमेंट तो करो। अब बात आती है एंजाइटी की। एंजाइटी के बारे में थोड़ी सी बात मैं और बता देता हूं, जिसको कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो भी है ना, ये हम आपके साथ में शेयर भी कर देंगे, बट आपको कनेक्ट करना है। शुरू में मैंने क्या बताया? इम्यून सिस्टम बार बार ऊपर जा रहा है क्योंकि आप कुछ खतरा डाल रहे हैं शरीर में। जब भी इम्यून सिस्टम बार बार ऊपर जाता है, वो कैसे जाता है? आपका एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर छोटे छोटे दो ग्लैंड होते हैं दोनों तरफ में, वो कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम हाइटन अप होता है, ऊपर जाता है। इसे कहते हैं एड्रिनल ओवर एक्टिविटी। बार बार इम्यूनिटी को बढ़ाने के कारण एड्रिनल ओवर एक्टिविटी हो रही है। इसकी वजह से आपके बॉडी में कोई भी फंक्शन सडन शूट करता है, फिर नीचे जाता है, फिर शूट करता है, फिर नीचे जाता है। इसे एंजाइटी कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। एंजाइटी की वजह से आपको इंसोम्निया हो रहा है, क्योंकि एंजाइटी की वजह से आपके अंदर स्मूथ रनिंग नहीं हो रही किसी चीज की। कनेक्ट किया दोनों चीजों को, तो आप बताइए सोल्यूशन क्या है? एक सोल्यूशन मैं आपको सिंपल तौर पे बता देता हूं। हाँ, आपके शरीर में फ्लो अगर आपको ठीक करना है, तो सपोज कीजिए आपको जूस पीना है, और जूस पीने के लिए जो स्ट्रॉ आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर पल्प फंस गया, किचन का सिंक ब्लॉक हो गया, तो उसमें फ्लो नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे आप? थोड़ा फूंक मारेंगे, जोर लगाएंगे, या थोड़ा प्रेशर डालेंगे ना सिंक में, तो पानी वापस से निकलना शुरू हो। तो अपने अंदर अगर हल्के से एक पैटर्न में प्रेशर डालेंगे ना, तो आपका फ्लो ठीक हो जाएगा। कुंभक करेंगे ना, तो ऐसे हमारे पास में केसेस बहुत आते हैं, कहते हैं 6 गोलियां 6 एल्ट्रैक्स खाते हैं सोने के लिए, और कुंभक करने के बाद घोड़े बेच के सो रहे हैं। क्या किया हमने? फंडामेंटल समझिए, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कैसे ठीक हो सकता है। तो अगर अपने अंदर का फ्लो अगर आप ठीक कर देंगे कुंभक से, अपने अंदर तो कुंभक से ही काम कर सकते हैं, और तो दूसरा तरीका नहीं है काम करने का। देखो, छींक मारते हो तो भी सांस रुकती है, उल्टी करते हो उससे पहले तो भी सांस रुकती है, कॉन्स्टिपेशन में जोर लगा के बाहर निकालना है तो भी सांस रोक के जोर लगाते हो, डर जाते हो तो भी सांस रोक लेते हो।
एंजाइटी होती है तो भी बीच बीच में रुक रुक के सांस रुकती है, खतरा आता है तो भी सांस रुक जाती है, ऊपर से नीचे गिरेंगे तो सांस रुक जाएगी, छत से ऊपर नीचे कूद गए सांस रुक जाएगी। बिना सांस रोके तो आपका बॉडी प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता अपने आप को, आपकी सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई है। एंजाइटी कुछ समय तक कुंभक करेंगे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इंसोम्निया तो कुछ ही समय में आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। दिनेश परमार जी राइट्स, मुझे अक्टूबर 2022 में ब्रेन हेमरेज हुआ, लेफ्ट साइड पैरालिसिस है, दर्द बहुत है, इसका इलाज संभव है क्या? अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अच्छा, एक हमारे पास में DU दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए, आर्किटेक्चर कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके प्रोफेसर आए, उनको राइट साइड में लकवा मारा हुआ था। तो उन्होंने कुंभक सुना और उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या इससे फायदा होगा। मैंने कहा हाँ इससे फायदा होगा, आप करिए। 6 महीने बाद में उन्होंने क्या रिपोर्ट किया आपको मालूम है? उन्होंने कहा कि मेरे ना सेंसेशन ही खत्म हो गए थे राइट साइड में, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में 90-95% तक वापस आ गए। ठीक है, पहली बात एग्जाम्पल देके बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये ठीक हो सकता है ना। तो अगर पैरालिसिस कहीं पे हुआ है और नर्व डैमेज हो गया तो इसको रिकवर किया जा सकता है, इसमें सेंसेशन वापस लाया जा सकता है। किस हद तक, कहां तक, वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, हैमरेज जो कह रहे हैं वो क्लॉट फॉर्मेशन से होता है। ब्लड का थक्का जम जाएगा ब्रेन में कहीं जाके तो ब्रेन हैमरेज होगा, या उसकी वजह से फिर पैरालिसिस होता है। आपको क्या मालूम है, हार्ट अटैक भी ब्लड क्लॉटिंग से होता है, ब्लॉक होने से हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट ब्लॉकेजेस से हार्ट अटैक नहीं होता, क्लॉट फॉर्मेशन से होता है। तो ये क्लॉट अंदर क्यों बन रहा है आपके शरीर के? क्या ये सोचा आपने? क्लॉटिंग तो हमें बचाने का तरीका है। आपको बाहर चोट लगती है, चोट अगर क्लॉटिंग नहीं हो तो सारा खून निकल जाए। क्लॉटिंग की वजह से वहां पे खून रुकता है, उसके बाद वहां हीलिंग होती है, नए टिश्यू बनते हैं, और इस तरीके से आप रिपेयर वर्क होता है आपके बॉडी में। तो अंदर क्लॉटिंग क्यों होने लग गई आपके? बाहर चोट लगी तो खतरा समझ में आता है, अंदर आपने क्या खतरा पैदा कर दिया? भाई नस फटी थी ना, क्यों फट गई थी नस? ये तो आपको बोला गया नस फटी थी, मगर नस नहीं भी फटे तो भी क्लॉटिंग हो सकती है। देखो अंदर डैमेज क्यों हुआ, नस क्यों फट गई? कमजोर होगी। कमजोर को ठीक कैसे करेंगे? कुंभक करेंगे, आपकी नस फटनी बंद हो जाएगी, क्योंकि हम नसों की टॉलरेंस कैपेसिटी बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। एक बात तो ये बता दिया, मगर क्लॉटिंग क्यों हो रहा है अंदर? क्या बाकी लोगों में 200 साल, 300 साल, 1000 साल पहले नस में डैमेज नहीं होता था अंदर? क्लॉटिंग तो नहीं होती थी ना, रिपेयर वर्क इतना अच्छा था। मगर ब्लड गाढ़ा हो रहा है आजकल ना, तभी खाने के लिए एस्प्रिन देते हैं, कहते हैं एस्प्रिन खाते रहो, ब्लड थिनर, नहीं तो कोई और ब्लड थिनर खाते रहो जिंदगी भर। भाई गाढ़ा क्यों हो रहा है आपका ब्लड, ये तो बताइए। ऐसा तो था नहीं कि आपके पूर्वज एस्प्रिन खा के जीते थे, आपने कुछ ना कुछ तो खतरा अंदर डाला होगा, तभी वो शरीर अपने आप को बचाने के लिए गाढ़ा कर रहा है। क्या खतरा है? वापस से कनेक्ट कीजिए, केमिकल, फूड जो खा रहे हैं, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोसेस, एनवायरमेंट जो सांस ले रहे हैं, वही खतरा है। तो जब आप खतरा इतना क्रिएट करेंगे तो बचाने के लिए शरीर ब्लड को गाढ़ा करेगा, और ज्यादा खतरे में अगर अंदर डैमेज होता है तो गाढ़ा ब्लड एकदम से क्लॉट हो जाएगा ना। तो ये कैसे ठीक करेंगे बताइए? जब अंदर बॉडी की रिस्क को कम करेंगे। रिस्क को कम तभी करेंगे जब टॉलरेंस आपका, सभी का तो नहीं हो रहा ना, और भी तो लोग हैं जिनकी सेम कंडीशन में उनको हेमराज तो नहीं हो रहा, हेमराज जो ब्लड का होना चाहिए नहीं हो रहा ना, और भी लोग हैं। क्यों नहीं हो रहा? वो ज्यादा टॉलरेट कर पा रहे हैं इस सिचुएशन को, आप नहीं टॉलरेट कर पा रहे थे। तो खतरे की वजह से ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड के गाढ़े होने का चांस ठीक हो, वो ज्यादा हो गया। तो
केवल बीपी था। बीपी क्यों बढ़ाता है आपका बॉडी? क्योंकि बिना प्रेशर के कोई काम नहीं होता। अगर आपके बॉडी अंदर से प्रेशर आपकी कम हो गई है, क्षमता प्रेशर बनाने की, तो बॉडी को तो बनाना पड़ेगा ना प्रेशर। तो बीपी तो आपको बचाने का तरीका है। अगर आप अंदर प्रेशर बना लेते कुंभक से, तो बीपी तो वैसे ही नुकसान नहीं करता, है ना। बीपी वैसे ही नुकसान नहीं करता आपको। आप दूसरे तरीके से भी तो सोच सकते हैं। आप बॉडी को क्रिमिनल के वे में क्यों सोच रहे हैं? आप सोचिए ना, बीपी क्यों बनाया उसने? क्योंकि अंदर प्रेशर बन नहीं रहा, उसको काम करना है, उसको चीजों को मूव कराना है, तो उसमें प्रेशर ग्रेडियंट में ही मूव होता है अंदर सब कुछ। तो कुंभक से अगर प्रेशर बना लेते तो बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती, फिर उसको ब्लड थिक नहीं होता, खतरा नहीं, कम हो जाएगा, ब्लड थिक होना बंद हो जाएगा, क्लॉटिंग के चांस बंद हो जाएंगे। मगर ये तो आपका शरीर ही कर सकता है ना, दवाई तो नहीं कर पाएगी। मुझे बताइए, एस्पिरिन खाते खाते भी हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है ना दुनिया में, और बाकी ब्लड प्रेशर की दवाई खाते खाते, ब्लड प्रेशर की दवाई की वजह से ही हार्ट अटैक होता है। क्या आपको मालूम है इस बात का? मैं आपको कोरिलेट करके बताता हूं। शरीर में पानी की जब भी कमी होगी, आपके हार्ट पर लोड आएगा। तो डिहाइड्रेशन के थ्रू अगर गुजरे होंगे, कभी दस्त लग गए, डिहाइड्रेशन हो गया, तो हार्ट की बीट भी फील होती है, यानी उस पर लोड आता। पानी जैसे ही शरीर से निकला, आपके हार्ट पर लोड आता है। अब बीपी कम कैसे करते हैं? शरीर से पानी निकाल के। तो जो इसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर, लोसाकार, तोजार, रिपेस, कोवंस, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमिसार्टन पोटेशियम, इसके साथ कॉम्बिनेशन के साथ में आप ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हो। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, इसके साथ में ये कॉम्बिनेशन में मिलता है आजकल, ब्लड प्रेशर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर के कॉम्बिनेशन में। यानी आप शरीर से ब्लड का वॉल्यूम कम करके ब्लड प्रेशर कम दिखाते हो। ये एक चालबाजी है। ये कोई ब्लड प्रेशर कम ठीक तो होता नहीं है ना कोई, तो ये चालबाजी है। ब्लड का वॉल्यूम कम कर दो, ब्लड प्रेशर कम दिखा। आपको मशीन में देखना है केवल अपनी लाइफ। प्रॉब्लम ये है। और पानी कम करेंगे तो हार्ट पर लोड आएगा, और उसी वजह से हार्ट अटैक के केसेस केवल उम्र दराज लोगों में नहीं, यंगस्टर्स में बढ़ गए। जो जेनेटिक बीमारी पहले नहीं हुआ करती थी, उसको हम जेनेटिक बना रहे हैं। तो इसको भी समझिए। ये आसान चीजें हैं समझने में, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें जब आप फालतू फंड के लैंग्वेज डाल देते हैं ना, ग्रीको रोमन शब्दावली, तब आप नहीं समझ पाते। इसको समझिए और अपने शरीर को हेल्प कीजिए, ठीक है ना। कुंभक कीजिए। क्या करूंगा अब इतने बोलने के बाद भी? क्या करूंगा? क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा है। अभी भी दवाई ढूंढोगे। नहीं 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 नहीं, जितना टॉर्चर शरीर को क्या, अब इसको थोड़ा स्ट्रांग बनाइए, अंदर से स्ट्रांग बनाइए। कुंभक कीजिए। ये प्रोग्राम इसी के लिए डिजाइन किया है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और लाखों लाखों रुपए जो है आपके बचेंगे, और शरीर खराब होने से बचेगा। आगे की उम्र आपकी और हेल्दी होगी, इंडिपेंडेंट रहेंगे जब तक जिएंगे, तभी तो लाइफ को एंजॉय करेंगे। इसी के साथ विल स्टॉप एंड विल फिनिश दिस, एंड दिस वेबिनार। आप लोगों का वेबिनार में आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आपका जीवन स्वस्थ, सुखमय, वैभवशाली ऐसा हो, हमारी शुभकामनाएं। नमस्कार स्वामी जी। Thank you everyone, and thank you for staying so late in the webinar. If you have any questions, because many of your questions have not been taken up due to shortage of time, so please you can post your question in the WhatsApp group, and we'll answer each and every question there. If there's something which we need to consult Swamiji about, then we'll do that also. आप अपने सवाल अभी ग्रुप में डाल सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आपका सवाल नहीं लिया गया है। नेहा का और मेरा नंबर भी शेयर करेंगे, इन केस आपको इंडिविजुअली या पर्सनली बात करनी है, वो आप कल कर सकते हैं। विद दिस विल क्लोज द वेबिनार। थैंक यू। गुड नाइट।